का मेरा आखिरी टॉपिक है इथिक्स इन रिसर्च अँड पब्लिकेशन. तर संशोधन करताना आणि काही प्रकाशित करताना नैतिकतेचा केलेला वापर किंवा नैतिकतेच्या प्रिन्सिपल्सचं केलेलं पालन, नैतिकतेचं पालन. नाव इट इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम टू ॲस्पेक्ट्स. नंबर वन, today we are in an information age. What do we mean by that? That means information is widely available. You can simply go, select, copy and paste. जिसको हम प्लेगरिज्म के बारे में बात करें, वो एक हो गया. आप इमेजिन कीजिए आपके कोई रिलेटिव या आपके जो भी प्रोफेसर या एचओडी हो गए, जिन लोगों ने 1990s या 1995 के पहले थीसिस किया है उनका, ते टाइपरायटर वाले होते, त्यावेळेस कम्प्युटर वगैरे नव्हते. लायब्ररीत जाऊन माहिती गोळा करायची. वी आर रिलेटिव्हली इन अ व्हेरी कम्फर्टेबल इरा ऑफ इन्फॉर्मेशन with everything available. That's why it becomes more important and relevant in today's context. That is one part, the plagiarism during research or publication. Second aspect is that those who are pursuing or having an ambition of becoming, say, vice chancellor, pro vice chancellor, registrar, controller of examination, or whichever is a higher importance academic post in their lives, academic lives, for them, it is important to have their track record very, very clean as far as their ethics in research and publication is concerned. Because since 2005, we are also under Right to Information Act. I can literally demand a PhD thesis or synopsis or a particular paper of a particular person occupying a very higher position in a university, and if I could prove that this particular person has done certain unethical practices during his research or publication, I can take a press conference and tarnish his or her image. That is also happening now, which was non-existent at least 10-15 years ago. So the point here is that since our work will be coming into the limelight, whether we become big or not big is a different matter. We should make sure that we should follow all the principles, all the practices, so that our work will be as ethical as possible. It is impossible to make 100% ethical work, impossible. But if you could do that, then it will be certainly helpful for us. So if by chance you become a big person, then it's a different matter. But even if you remain ordinary person, then you are comfortable in your mind that whatever I have done, then to the best of my ability and best of my capability when I was doing my PhD research. Okay. So आता इथिक्स म्हणजे काय हो, कोण सांगेल मला? व्हॉट इज इथिक्स? एनी थॉट? क्या होता है इथिक्स? काही सांगा, कोणतेही उत्तर द्या, कसंही द्या, मला आवडेल. The principles by which you work. Okay, very good. Guiding principles by which you work. Very good. Or these are general rules and regulations, sir. Rules and regulation. Okay, fair enough. Or anything else? Ethics of good conduct. Good conduct. Ethics of good conduct. Okay, हाँ मैडम बोलिए, आप क्या बोल रही थी? Loyalty while doing work. Okay, very good. Okay, so more or less you are in a ballpark. Yes, correct. So we are in a ballpark range to understand what is ethics. Now, ethics is a branch of philosophy. Morality and ethics are the two sides of same coin.
ज्याला बरेचदा आपण मराठीमध्ये नैतिकता, इथिक्सला नैतिकता म्हणतो, तो मोरॅलिटी सुद्धा कुठेतरी शब्दशः नैतिकतेच्या जवळ ती येते. त्याच्यामुळे दीज आर दी सेम कॉइन के ये दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं. The problem with ethics is that it cannot be taught but only can be practiced. Now, this is one of the biggest hurdle of the subject ethics. अब आप मुझे बताइए, how do we learn ethics? हम ethics कैसे सीखते हैं? Any views, any comments? By observing others. Very good. By observing others. Very good. Or the moral principles that we have been brought up with, very good. Excellent. or the way our ideals behave. Excellent, excellent, Pandit Madam. So, ethics is learned unknowingly by a person at the early stage of his or her life. So, घर में एक मान लो मोटा मोटी 3-4 साल का बच्चा, लड़का या लड़की जो भी होगी, a 3-4 year old kid will start to observe how her or his parents, siblings behave. जब वो स्कूल में जाने लगेगा या जाने लगेगी, वो दोस्तों को, टीचर लोगों का बिहेवियर देखेगी. ये अराउंड द एज ऑफ 13, 14, 15 उसका एक इथिकल फाउंडेशन मन में बस जाएगा. हे सगळं नकळत होतं बरं का. नैतिकतेची स्थापना तुमच्या मनात ही तुमच्या घरापासून सुरुवात होते, तुमचे पेरेंट आणि तुमचे भाऊ बहीण. So by age of say 13 to 15, there will be a foundation of ethics in that particular person. Every person has it. Now the problem with ethics is that any ethical person can become unethical, and any unethical person can also be transformed into ethical. The good example of this is वाल्या. वाल्या कोण था? वाल्या चोर होता, पण वाल्याचा काय झाला? वाल्याचा वाल्मिकी झाला. आसाराम कोण होता? आसाराम बापू होता. आसारामचं काय झालं? जेल में हवा खा रहा है. So both way transformation is possible. So a perpetually person cannot be ethical, or perpetually person cannot be ethical also. Now this is a dilemma. Hence, practicing, as some of you have said, practicing ethics is a day-to-day principle. Day-to-day. म्हणजे समजा आज अटायर सर उगाच उशिरा आले असते, चलना यार 11:15 को क्लास चालू करते, चलना यार 20 मिनट का और लंबा ब्रेक ले लेते, चल जल्दी खत्म कर डालते. हे सुद्धा ब्रीच ऑफ इथिकल कोड आहेत. म्हणजे तुम्हाला ज्या ड्यूटी दिलेल्या आहेत, अभी आप लोग कॉलेज में काम करते हो, आपको वर्कलोड अलॉट हुआ होगा की आपको वीक में या एक दिन में इतने लेक्चर लेणे. आता मनुष्य कधी कंटाळा येतो, कधी काही समस्या असतात, कधी आपण वर्गात जाऊन टाइमपास करतो. मी सुद्धा केलाय, गप्पा गोष्टी करायच्या, आज शिकवायची इच्छा होत नाही, हे सगळं होतं. दॅट इज ऑल्सो अ ब्रीच ऑफ इथिक्स. नाउ द गुड थिंग अबाउट इज दॅट इट कैनॉट बी कॉल्ड एज लीगल और इलीगल. ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. कोई अगर अनइथिकल होगा तो उसको जेल में पनिशमेंट नहीं होगी. अगर आप पेपर में कुछ खबरें पढ़ते होंगे तो एक शख्स थे जो नागपुर यूनिवर्सिटी में बड़े पोस्ट पे थे, फिर वो एक मेडिकल कॉलेज के डीन भी बने, अभी भी है. और 2 दिन पहले पेपर में मैंने पढ़ा कि वो एक एडवाइजरी जर्नल के बोर्ड पे अपॉइंट हुए. मला त्या दिवशी वाटलं होतं त्यांना पत्र लिहून यांचे किस्से त्यांना सांगू, पण मी चूप बसलो. म्हटलं जाऊ द्या, उगाच कशाला त्रास ओढवायचा. त्या व्यक्तीवर असा आरोप होता की त्यांची जी एमफिलचा जो रिसर्च होता तो लिटरली पूर्ण पुस्तक एक छापलं आणि तो सबमिट केला आणि त्यांना एमफिलची पदवी नागपूर विद्यापीठात मिळाली होती. आता हे बरंच याच्यावर राजकारण झालं,
पण माझ्या मते तुम्ही जर मला विचारलं तो व्यक्ती अनैतिक आहे. आणि अनफॉर्च्युनेटली असे बरेच आयडियल लोक तुम्हाला उच्च पदावर दिसतील. एनिवे, दॅट इज नन ऑफ अवर बिझनेस. अवर बिझनेस इज टू मेक शुअर दॅट सिन्स वी वेक अप टिल वी गो टू द बेड, वी विल ट्राय टू बी 51% ऑन द इथिकल साइड. हा एक तुम्ही निर्णय स्वतः करा बरं का. 49 टाइम तुम्ही अनइथिकल राहू शकता. बरं, याच्या ज्या बाउंड्री लाईन्स आहेत, इथिकल आणि अनइथिकलची लाईन खूप काय म्हणतात इनविजिबल लाइन असते. से फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज में टीचर हो, आप पढ़ाते हो और अचानक आपको वो कॉलेज, आपके क्लास में का एक लड़का या लड़की अच्छी लगने लगती है. दैट इज नेचुरल. आई एम नॉट सेइंग इट इज अननेचुरल, but you must aware yourself that you are there as an imparter of knowledge, education. You must draw your boundary line. You should not step that line. So if you have the awareness की माझं कर्तव्य काय, याच्यातनं एक मोठा कन्सेप्ट तयार होतो, राइट्स अँड ऑब्लिगेशन, हक्क आणि कर्तव्य. When you are aware of your obligation, automatically you will detract yourself from that particular trap. मी काही कॉलेजेसमध्ये असेही प्राध्यापक बघितले आहेत तर ज्याने खराले कॅमेरा इट्स ओके, आय एम नॉट देअर टू जज एनीवन. मी असा विचार करतो कदाचित त्या ठिकाणी मी असं करणार नाही किंवा असं न करावं याची मला जाणीव होऊ शकली पाहिजे असा मी विचार करेन. आय एम नॉट जजिंग की कोणता स्टुडंट खर्रा आणतोय कोणासाठी हे वाईट आहे किंवा अनैतिक आहे. नो नो नो, देयर इज नो सच थिंग एज राईट और रॉंग, or sorry, good or bad in ethical or unethical sphere. It is always about right and wrong. So what can be right for me can be wrong for you. Now let's take a very simple. When I came back to India, I saw many people jumping the red light traffic वर. मला असा प्रश्न पडतो का हे लोक पुढच्या चौकात जाऊन यायला नोबेल प्राइज भेटून राहिलं का? Why don't they stop at signal? आराम से इधर उधर टापो लोगों को, कौन कैसे कपडे पहन के, किसके बाल कैसे, देखो ना वहां पे. मला ट्रॅफिक सिग्नल खूप आवडतो कारण मग मी इकडे तिकडे बघत बसतो. Why you have to break that traffic signal? It is meant there to obey the rule. So that is unethical according to me, because it may cause that person his or her life. अगर opposite direction से कुछ आ रहा है तो उसका जान जा सकता है, वो handicap. So ethics can be even, I do not throw any plastic. I never make our earth dirty. मी त्याबाबत फार प्रिन्सिपल, झाडं कधी कापत नाही, कोणी कापले तर भांडायला जातो. सो नैतिकतेला परिसीमा नाहीये. प्रत्येक व्यक्तीला जे, आता मला जर ट्रॅफिक सिग्नल ओबे करणं बरोबर वाटतं तर कोणाला ते चुकीचं वाटेल. अरे क्या रुकने का, पेट्रोल महंगा है, फालतू जा रहा हूं. इट मे बी राइट फॉर हिम. नोबडी कॅन जज, बट one person should know what is right for him or her and what is wrong for him or her. याची आपल्याला 24 तास जर जाणीव असली तर मग तुम्ही नैतिकतेचा तो मार्ग पूर्ण जीवनात त्याचा अवलंब करू शकता. हा फक्त संशोधनाच्या अँगलमधनं आपण शिकणार आहोत, पण मी हा विषय आपल्या भारतातले जे 248 लोक युपीएससी मेन क्लिअर होऊन जेव्हा IAS कॅडरमध्ये येतात त्यांना मला शिकवायचा मौका येतो. पुण्याला त्यांना शिकवावं लागतं आणि हे सगळे साहेब होणार असतात, कलेक्टर होणार असतात. मग यांना मी सुशासन आणि नैतिकता हा मी बऱ्याच सिनियर गव्हर्नमेंटच्या लोकांना, आता सध्या कोरोनामुळे थांबलाय सगळं प्रकरण, but I do often teach governance and ethics very frequently to the senior bureaucrats of Government of India. So it is not one act, it is a thought process. चहाच्या टपरीवर तुम्ही चहा पिल्यावर you must be able to find a dustbin, dispose your glass. That is also ethics. ऐसा नहीं है कि ट्रेन में आपने खाना खा लिया और आपने खिड़की खोल के वो पॉलीयुरेथीन की थाली फेकली ना. Who are you to? म्हणजे मला या सगळ्या गोष्टींवर बराच राग येतो, बराच. म्हणजे वी कॅन टॉक लिमिटलेस बट वी डू नॉट हॅव लिबर्टी ऑफ टाइम ऑन दॅट. सो इट कॅनॉट बी टॉट, it can be practiced and it can be learned daily by you. Now, in the past 10 years, many universities, including Nagpur University,
आय ब्रॉट दिस टॉपिक इन दी MBA करिक्युलम. मला BBA वगैरे माहित नाही, पण आमच्या MBA मध्ये गेल्या 10 वर्षात हा आला. Because they thought that the people who will be successful businessmen or general managers or vice president, they should be ethical also. And in United States, when you apply for a very high position, they take your ethical test. मी एकदा दिली होती आणि त्यांनी मला सांगितलं, साहेब तुम्ही फेल झाले ती टेस्ट. त्यांनी मला जॉब दिला, पण त्यांनी मला सांगितलं यू फेल्ड इन एथिक्स. मग त्यांनी मला नंतर ट्रेनिंग दिलं त्याचं एका आठवड्याचं. सो फॉर हायर जॉब you have to pass the ethical test. So it has become kind of a practice in a business world, but beyond that नाही. मी तर जे कोणी शिक्षण मंत्री असतील आपले, काय गायकवाड, वर्षा गायकवाड, जे कोणी, तुम्ही 5वी पासून हा टाका ना विषय, सिलेबस मध्ये टाका. नैतिकता आता फार गरजेचं आहे. ज्याप्रमाणे आपला समाज पुढे चाललेला आहे, ज्याप्रमाणे पर्यावरण बदलत आहे, ज्याप्रमाणे हे रोगरायाचे प्रमाण इकडे तिकडे वाढत चाललेलं आहे, नैतिकताला आपल्याला वैयक्तिकरित्या बघायचं. Now, what happens when it comes to ethics and research? Majority of the scientists which are doing research across the world, even as of now as we speak, do not have a formal training in research ethics. आप मला हे सांगा, तुमच्या गाईडनी तुम्हाला सांगितलं का हो बोलून, बेटा इथिकली काम कर, काम थोड़ा कच्चा रहेगा तो चलेगा और शॉर्टकट मत ले. मैं 100% बोलता हूं, किसी भी गाइड ने आपको नहीं बताया होगा. ये फैक्ट है, इसमें गाइड का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही नहीं है ना अपने यहाँ. ये प्रैक्टिस ही नहीं है अपने यहाँ मतलब दुनिया में. आई एम नॉट टॉकिंग ओनली इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, व्हेनेवर इट कम्स टू द रिसर्च, the students are very poorly mentored in ethical part of the research. Then faculty also do not have formal education of ethics. अरे भैया, अगर आपका गाइड आपको इथिक्स का ज्ञान दे रहा है तो उसका घड़ा भरा रहना चाहिए ना. उसका घड़ा आधा होगा तो वो क्या ज्ञान देगा आपको, ये सुधा नहीं है. Now there are certain laboratories like Jet Propulsion Laboratory, NASA, in India we have National Chemical Laboratory, Pune, Physical Laboratory, Bangalore. Laboratory to laboratory, the wisdom may or may not be handed from mentor to student. It also differs. ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, but it also differs. There are no standard protocol as to what extent ethical protocol should be followed while conducting a research. हे जगात कुठेही नाही आहे साहेब, आजही नाही आहे. आय होप हे होईल कधीतरी, पण आज त्याची कोणालाही गरज वाटत नाही. तुमच्या परीक्षेच्या अँगलनी हे 6 प्रिन्सिपल अत्यंत महत्वाचे, अत्यंत महत्वाचे. दीज आर दी 6 प्रिंसिपल ऑफ द एथिक्स. ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए, नॉट ओनली फॉर योर PhD बट ऑल्सो फॉर योर लाइफ. Some of the principle also applicable to your life. The first principle is truth. मुझे बताओ, what is so unique about truth? सांगा बरं, सच्चाई की क्या खासियत है, क्या है? What do you mean by truth? It cannot be changed, sir. Okay, it cannot be changed. Very good. It's always better. You have to remember. It is always, sorry, You bitter. don't have to Okay. remember truth. हाँ, you don't have to remember. Okay, very good. झूठ को सत्य है सत्यच असते. सत्य है सत्य असते, बरोबर है. किसी भी टाइम पीरियड में सच को अगर सच को एग्जामिन करेंगे तो वो हर टाइम पीरियड में वैसा ही होना चाहिए. वैसा ही रहेगा. इट इज यूनिवर्सल एंड इट डू नॉट चेंज. सो वेरी गुड, वेरी क्लोज सर, आंसर. सत्यता को प्रमाणता की आवश्यकता नहीं होती है. नहीं होती है. वेरी गुड. सो द ट्रूथ सत्यमेव इज, जयते. Truth always wins. सारदा मैडम ने बराबर बोला. ट्रूथ इज ऑलवेज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट. आई कैन से दैट दीना डोंगरवार 90% ट्रूथफुल है या सारिका नायडू 80% ट्रूथफुल है. नो, इट इज एब्सोल्यूट. दैट मीन्स इन कंपैरेटिव. सेकंड, जैसे आपने बोला कि सच्चाई हमेशा बाहर आती है, ये याद रखो. ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू हाइड इट. एक दिन वो बाहर आता है. और कब बाहर आता है?
जिस दिन आप बड़े पोजीशन पे बैठे हो, आप स्क्रूटिनी में आ जाते हो और लोगों को आपकी सच्चाई पता चल जाती है, और उस वक्त आपकी नजर, आप दूसरों के नजरों में गिर जाते हो. म्हणून माझी सगळ्यांना विनंती आहे, बऱ्याच लोकांना हा भ्रम असतो, अरे मेरा बारीक में चल रहा है नया लफड़ा, ना बीवी को मालूम है, पति को मालूम है, चल रहा है 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, 20 साल भी चलेगा, एक दिन बाहर आएगा और वो दिन बहुत महंगा होगा. इसीलिए गलत काम मत करो, बिल्कुल मत करो. गलत काम हमेशा शॉर्टकट बहुत ल्यूक्रेटिव रहता है, सिग्नल तोड़ना बहुत ल्यूक्रेटिव है, बट वो 2 मिनट की सजा आपकी जीवन खराब हो सकता है आपका. नेवर टेक शॉर्टकट. चलते ट्रेन में मत उतरो, चलते ट्रेन में मत छोड़ो. टेक लाइफ. सच्चाई जो है उसको बाहर आना है मतलब आना है. और जैसे किसी ने बोला, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके एम्ब्लम पे लिखा है सत्यमेव जयते. 3 लॉयंस है, लिखा है ट्रूथ ऑलवेज विन. आप अगर हिस्टोरिकली भी देखोगे, अब मैं 50 साल का हूं, हमने जब नागपुर में 82 में टीवी आया तो बुनियाद, रामायण, महाभारत ये सब हम देखते थे. इवन अमिताभ बच्चन के भी जो 70s 80 तक के पिक्चर थे, या फॉर दैट मैटर बॉलीवुड के पिक्चर, उसका एंड क्या होता था? उसका एंड वही होता था, बुराई की हार और सच्चाई की जीत. विलन हमेशा सलाखों के पीछे जाता था और हीरो हीरोइन को मिल जाता था. सो ये हमको बचपन से बताया गया है, विच इज व्हेरी गुड. इट इज देयर. म्हणजे रामाला आपण एक पत्नी व्रत म्हणतो, ही प्रथा है. बट एट द सेम टाइम आप अगर महाभारत देखोगे तो द्रौपदी के 4 हस्बंड भी थे, राइट. सो हम राम को अपना आयडियल मान के चलते हैं. संसाराचं, अगर तुम्ही या लोकांनी लग्न वगैरे केलं, मला संसाराचं तेवढं नॉलेज नाहीये, मी बहुतेक घाबरतो, पण ते आपल्याला आयडियल म्हणून आपल्याला शिकवलं. सो ट्रूथ इज अ cornerstone of ethics. It comes out no matter what, come what may, it will come out. So it is better to avoid something which is not ethical. So if I can avoid that, then I can walk on my. आपको हर पल हर दिन ऐसे आपको माया जाल आपके सामने डाली जाएगी. चलिए पैसे ले, ये काम कर रहे. आपने देखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बाबू ब्राइब एक्सेप्ट करते, हर दिन आएगा. हाँ, आपने नहीं लिया तो आपको तकलीफ होगी. म्हणजे ये दीपाली चव्हाण प्रकरण आहे ना, उगाच त्रास, बिचारीने आत्महत्या केली, नैतिकता होती तिच्याकडे, पण ती कुठेतरी कमी पडली. म्हणजे तिने आवाज अजून उठवायला पाहिजे होता असं मला वाटतं. बट एनीवे दैट इज नॉट द केस ऑफ डिस्कशन. बट हमारे यहाँ क्या, दुनिया में सब जगह जो सच्ची राह पे चलता है उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. बट आप एक चीज याद रखिए, आप भले ही कठिनाइयों का सामना करोगे, मतलब मैं एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, ये इथिक्स का ट्रेनिंग में उनको देने गया, तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो मेरे पास आए, बहुत बड़े अफसर थे, बड़े पोस्ट थे. सर बोले आपने जो बताया मैं 100% एग्री करता हूँ. बोले पर बोले सर मैं पैसे नहीं खाता हूँ, तो मेरा 17 जगह तबादला हुआ है, 17 जगह. ये सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है. बोले अब बताइए. बोले सर, मैंने कहा सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतनी, बोले बच्चों के एजुकेशन डिस्टर्ब हुए, मेरी लाइफ खराब हुई, मेरे को बहुत तकलीफ दी क्योंकि मैं पैसे नहीं खाता और मैं खाऊंगा भी नहीं. अब मेरे रिटायरमेंट के 4-5 साल बचे. बोले फिर मैं शांति से. तो असेही लोक तुम्हाला मिळतात. इधर यू बिकम अ पार्ट ऑफ सिस्टम और यू बिकम अ सिस्टम युअरसेल्फ. इफ यू बिकम अ सिस्टम युअरसेल्फ, लॉट ऑफ पीपल विल ट्रबल यू. तुम्ही तुमच्या कॉलेजमधले एक आदर्श प्राध्यापक किंवा शिक्षिका किंवा शिक्षक असाल ना, बाकीचे खूप लोक तुमच्यावर जळतील, फटाके लावतील, गॉसिप करतील, करने दो. बट एक चीज याद रखो, व्हाट इज द एंड ऑफ लाइफ? दैट इज अ डेथ. ओके. और इथिकल प्रिंसिपल क्या कहते हैं? वन ऑफ द हैप्पीएस्ट थिंग फॉर अ पर्सन इज टू मीट हिज डेथ इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल मैनर. मतलब आपने आपका खाना वाना खा लिया, सब लोगों से बात कर ली, आखिरी बार सांस ली और आंखें बंद करके दुनिया को अलविदा कहा. दैट इज द मोस्ट रिवॉर्ड ऑफ द पीपल हु आर फॉलोइंग द इथिकल प्रिन्सिपल. याला सबस्टॅन्शिएट करायला काही डेटा नाहीये बरं का, पण माझंही हे वैयक्तिक मत आहे.
मैं जिंदगी से मौत से मोहब्बत करूंगा ताकि वो आए, सुकून से आए और मुझे लेके जाए. बाकी किसी चीजों से मुझे लगाव नाही. आणि आपल्या हिंदी मी माझ्या कार्यक्रमात नेहमी या साहेबांना एक गाणं सांगतो, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है, भला कीजिए भला होगा बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा यही सब कुछ चुकाना है. ही जाणीव ठेवा, तुमच्यात ठेवा, तुमच्या मुलांना शिकवा, विद्यार्थ्यांना शिकवा. 5% 2% लोक जरी असे तयार झाले आपल्या समाजात तर मग या आणि आहेत भारतामध्ये 5% नेहमीच लोक चांगले राहिले, 95% वाईट आहेत म्हणून आपला देश चालतोय. ते आपल्याला मेंटेन करायचं आहे. इट इज अप टू अस वेदर वी वॉन्ट टू बी इन 5 or we want to be in 95. So truth always come out. Second is a freedom. Now, while doing your PhD, the day you got the letter from your faculty or board कि फलाना फलाना आपका टॉपिक है, ये अप्रूव कर दिया है, फलाना फलाना RRC मीटिंग को जा रहा, उस दिन से लेके अगले 5 साल तक आपको फ्रीडम दिया गया है. Nobody will ask you आपने क्या किया, कैसे किया, no. Only thing, whatever is the protocol, you have to report your progress once a year or twice a year. जे काही तुमच्या विद्यापीठाचे नियम असतील. तुम्हाला स्वातंत्र्य दिलं आहे. स्वातंत्र्य कोणाला मिळतं हो? स्वातंत्र्य ज्याला मिळतं जे जबाबदार असतात. रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप गैर जिम्मेवार है तो आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा या आपको फ्रीडम देना नहीं चाहिए, और आप जिम्मेवार है तो आपको फ्रीडम देना चाहिए. आपके घर में आपकी छोटी बेटी है, आपके घर का नियम है कि रात को 7 बजे से पहले वो बेटी ने घर में आना है. पिछले 10 साल से वो कर रही है और एक दिन आके बोलती मम्मी मेरे दोस्त का बर्थडे है, आज रात को मुझे जाने दो, मुझे 10-11 बजेंगे. What you should do as a parent, you should let her go because all the time she was being responsible, so she should be granted a freedom. She deserves a freedom. पण जर एखादा बदमाश कार्टर असेल तर त्याला फ्रीडम नाही द्यायचं कारण ते बदमाश आहे. त्याच्यामुळे जबाबदारी आणि स्वातंत्र्य हे दुसरे 2 प्रिन्सिपल्स आहेत. याची जाणीव आपल्याला लक्षात ठेवायची. आपल्याला स्वातंत्र्य दिलं आहे जेणेकरून आपण जबाबदारीने आपलं संशोधन करू. जबाबदारी, तुमच्या जबाबदारी आहे का थिसिस कंप्लीट करायची चांगल्या पद्धतीने, तर दॅट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मग येतो इट इज अ क्वाईट कॉम्प्लेक्स प्रिन्सिपल, कॉल इट एज अ इंटिग्रिटी. इंटिग्रिटी मराठीमध्ये आपण त्याला एकनिष्ठता एकात्मता म्हणू शकतो. The best example I can share with you is that of Dronacharya and Eklavya. When Dronacharya refused to teach Dhanurvidya to Eklavya, he crafted a statue of Dronacharya and practiced. And then when he became expert, then Dronacharya asked him the thumb. That is a different thing. But तुम्हाला एकनिष्ठ होऊन तुमचं संशोधन करायचं आहे. तुमचे परिवार आहेत, तुमचे घर आहेत, तुमच्या समस्या आहेत. आताचा काळ कठीण आहे, बऱ्याच लोकांना डेटा घ्यायला बाहेर जाता येत नाहीये. कॉलेजमध्ये तुमचे फटाके लागत असतील, ये कर वो कर, दुनिया भर के प्रॉब्लम चालू है 2020 से. बट फिर भी तुमको इंटीग्रिटी से आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है तय समय सीमा में. ये हो गया चौथा प्रिंसिपल. देन द 5th प्रिंसिपल इज अ प्रोफेशनलिज्म. व्यवसायिकता. आपका थीसिस अगर मेरे हाथ में आएगा, इट शुड लुक absolutely professional, very well written, everything cited, referred, no spelling mistake, use of proper space, everything up to the notch. Because जब आप हायर लेवल का रिसर्च करोगे तो आपका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर भी आपको जज किया जाता है. आपका नॉलेज तो है, आप रिसर्च करो बिकॉज यू आर जीनियस, यू हैव नॉलेज, यू नो हाउ टू change idea into reality, but are you able to demonstrate also, right? So professionalism उसमें होना चाहिए. काम आपको काम अच्छे से ही करना है, चाहे कौन सा भी काम हो, चाहे रिसर्च का काम हो, पढ़ाने का हो, whatever work that you take in your day-to-day life should reflect the professionalism. And the last principle is a relatively new principle, collaboration. Since we are living in an internet age after 90s decade, lot of research is now collaborated using the technological platform. Many times you go in person, you work with a different research team, collaboration में काम हो रहा है और collaboration का काम ही सबसे तेजी से आगे बढ़ता है. जो कहते हैं ना एक से बढ़ अच्छे दो,
So 2 people can work better than 1 person. So while collaborating with other research counterpart, we have to be ethical in a sense that we will not ditch them, we will not cheat them, we will not take undue advantage of them, and we will not keep them in dark and file a patent on our own name. असं करायचं नाही. So these are the 6 principles of the ethics. ज्याला आपण ethical sphere म्हणतो. And the entire research revolves around this thing. तो मैं ट्रूथ के बारे में और एक आपको एग्जांपल देता हूं. अपने देश में टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज 5 years ago, 6 years ago, there was one vice chancellor. She was removed because of unethical practices. Now listen to a story. She joined the Pondicherry University as a vice chancellor, and after a couple of months, she floated a tender to construct some building. तो स्टूडेंट यूनियन ने बोला ये टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया कि कॉल ऑफ द टेंडर इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट. वो हटी नहीं, वो बोली ये टेंडर पास ही होगा. तो स्टूडेंट यूनियन ने क्या किया, राइट टू इंफॉर्मेशन में उसका बायोडेटा निकाला. एक वाइस चांसलर का बायोडेटा एक 60-70 पन्ने का होता है. जब आप वीसी के लिए अप्लाई करते हो ना, वो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन में मिलता है. उन्होंने वो निकाला. तो उसने अपने बायोडेटा में डाला था कि उसके पास श्रीलंका की पीएचडी है, एक यूनिवर्सिटी की. तो स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने वो यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया कि ये मैडम की सही में पीएचडी है क्या. वो यूनिवर्सिटी ने राइटिंग में दिया ऐसे किसी व्यक्ति को हमने पीएचडी नहीं दी है. वो पहला झूठ. दूसरा, वो यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने, वो वहां पहले पढ़ाती थी, कुछ साल पहले एक स्टूडेंट ने उसको पेपर दिया था रिव्यू करने कि मैडम ये पेपर देखो, ये पब्लिशेबल है क्या. मैडम ने वो पेपर अपने नाम पे पब्लिश किया. ये उनको जर्नल से पता चला. हे 2 मुद्दे घेऊन जे बनवारीलाल पुरोहित तत्कालीन तामिळनाडूचे राज्यपाल होते, विद्यार्थी त्यांच्याकडे गेले, रातोरात त्या बाईला पदावरनं हटवलं. आता अशा अजून 2-3 केसेस झाल्यात. मला वाटतं नॉर्थ मध्ये एक केस झाली. वीसी के पोस्ट पे अगर आपने आपके थीसिस में कॉपी किया है या किसी का गलत पेपर अपने नाम पे छाप लिया है, आपको तुरंत बिना इंक्वायरी निकाला जाता है, बिना इंक्वायरी. सो ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट. इसलिए मैंने बोला अगर आपको बड़े पोस्ट पे जाने का है तो आपको आपका पूरा बैकग्राउंड क्लीन रखना पड़ेगा ताकि आपके ऊपर कोई सवाल नहीं आहे. जसं आजच्या सकाळचा बघा एक, तो कोण तन्मय फडणवीस आहे, त्याचं वय वर्ष 25, देवेंद्रचा पुतण्या, त्याला लस दिली हो, आणि त्या भैताळ पोरांनी इंस्टाग्रामवर फोटो टाकला आणि मग ते सगळ्या राज्यकर्त्यांना त्याचे फोटो दिसले. मग आता नैतिकतेचा प्रश्न येतो की देशामध्ये जिथे लोकांना लसी मिळून नाही राहिल्यात तर काय फक्त फडणवीसांनी जगावं का हो. मी सुद्धा आता त्या दवाखान्यात जाणार आणि त्यांना मी विचारणार तुम्ही कोणत्या प्रोटोकॉल मध्ये याला लस दिली, तुमचं लायसन्स कैंसिल करा. जरा 1-2 दिन जाने दो, मंडे से मैं एक्शन में आने वाला हूँ. ये नैतिकता के इशू है. हो सकता है देवेंद्र को मालूम नहीं होगा, देवेंद्र इज माय फ्रेंड. आम्ही एकाच लाईनीत राहतो धरमपेठमध्ये, आम्ही एकाच वयाचे आहे, एकाच शाळेत गेलो होतो. तो सरस्वतीमध्ये होता, मी धरमपेठ, संघात आम्ही येतो. पण हे अनैतिकता नाहीये का. तुम्ही त्या डॉक्टरलाही विचारणार तुम्ही याला का घेतलं, याचं आधार कार्ड रजिस्ट्री का केलं तुम्ही, इथे कित्येक लोकांना लसी नाही मिळाल्यात, मग त्यांनी जगावं का. तर या गोष्टी आहेत. आता याच्यात त्यांना किती माहिती होती किंवा त्यांनी असं का केलं, असं कधीही करायचं नाही. कभी नैतिकता मतलब नैतिकता. मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूं. मैं 3 या 4 बार वेटिंग लिस्ट होती है ना, आरएसी, रिझर्वेशन अगेन्स्ट कॅन्सलेशन, 4-4 वेळा मी साईड बर्थ वर बसून पुण्याला गेलोय आणि मुंबईवरून नागपूर आलोय. टीटी पैसे मागत होता मला. म्हटलं मी देणार नाही, मी जाईल, रात्रभर जागून जाईल, पण मी तुला पैसे देणार नाही. मी त्याबाबत फार विचित्र माणूस आहे. मैं जाऊंगा मतलब वैसे ही जाऊंगा. आता तर अजून झालेलं आहे की आता त्यांना हक्काने द्यावं लागतं. म्हणजे मी एकदा सुरेश प्रभू साहेबांना वगैरे ट्विटर केलं होतं, तर मला भुसावळनंतर बर्थ देण्यात आला होता. सर आपले ट्विटर, म्हणजे तर मेरा हक है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. वाय यू आर डिमांडिंग मनी, रेल्वे इज पेइंग यू सॅलरी. लोक देतात म्हणून घेणारे सुद्धा आहेत. तर एनिवे दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. तर प्रत्येकाचे ते प्रिन्सिपल असले पाहिजे साहेब. व्यक्ती टू व्यक्ती ते प्रिन्सिपल वेगळे असतात. माझं अपब्रिंगिंग, माझं 50% आयुष्य विदेशात झालंय आणि सुरुवातीचे 25% खूप हे राष्ट्रभक्ती, देशभक्तीमध्ये, खूप ऑर्थोडॉक्स परिवारमध्ये मी वाढलोय. तर मी जरा एक कॉम्प्लेक्स व्यक्तिमत्व म्हणून मी बाहेर आलेलो आहे. पण आपले प्रिन्सिपल आपले ठेवायचे, त्याच्याशी कॉम्प्रोमाइज कधीही करायचं नाही.
तर संशोधन करताना सुद्धा काही बेसिक प्रिन्सिपलला आपण वापरू. आता गमतीचा पाठ. प्रॉब्लेम क्या है, there are many other activities that the government does not define as misconduct, but which are still regarded as most researcher as unethical. आपने कट पेस्ट किया, किसी को पता नहीं चला तो आपको जेल नहीं होगी. हाँ, किसी को पता चला तो बोलेगा आप फलाना फलाना अनइथिकल है, दैट्स इट. एक दोन दिवस लोक बोलतील, विसरून जातील. हा फॅक्ट आहे बरं का. आता in the world of research, it is called as deviation from the acceptable research practices. तर काही उदाहरणं तुम्हाला देतो. पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 डिफरंट जर्नल विदाउट टेलिंग एडिटर. करतात सगळे लोक. हे जाणून बुजून नाही करत. त्याला वाटतं माझा पेपर 10 जर्नल मध्ये जावा आणि मग 2-3 जर्नल छापतात आणि त्याला कळतच नाही बिचारा. सबमिटिंग द सेम पेपर टू 2 डिफरंट जर्नल विदाउट टेलिंग एडिटर. आगे चल के आप ईमेल में ये लिखना है, डियर एडिटर, given the intricacy of my research paper and thought process I have put behind, I am also taking the liberty to submit the same paper to journal A, B, C, D. If your esteemed prestigious journal decide to consider my publication, kindly let me know. In such incident or event, I shall intimate others to withhold their publication. हे लिहायला काय जातो तुमचं? लिहायचं, उद्यापासून तुम्ही हे करायचं. चुका माझ्याहीकडनं झाल्यात, उद्यापासून हे करायचं, हे टाकायचं. त्याला कळलं पाहिजे की मी 4 ठिकाणी पाठवतोय. आपण काय करतो, ऍबस्ट्रॅक्ट 5-6 जर्नलला पाठवतो, मग 2-3 जर्नल म्हणतात बाबा मला पेपर पाठवून द्या, मग आपण पाठवून देतो आणि मग आपण त्याला पाठपुरावा सोडून देतो. याला अनइथिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणतात. सिम्पली होत काही नाही पण हे अनइथिकल. जे मगाशी मी सांगितलं, नॉट इन्फॉर्मिंग अ कोलॅबरेटर ऑफ युअर इंटेंट टू फाईल अ पेटेंट अँड क्लेम दॅट यू आर दी सोल इन्व्हेंटर. याच्यावर तुम्हाला परीक्षेत प्रश्न येतो आणि भारतामध्ये सगळे लोक हे सगळं राहतात काय अमेरिकेतही करतात. इन्क्लुडिंग अ कलीग ॲज अन ऑथर ऑन अ पेपर इन रिटर्न ऑफ अ फेवर इवन दो द कलीग डिड नॉट मेक सीरियस कॉन्ट्रीब्यूशन. मैंने एक पेपर लिखा, वीना डोंगरवार को बोला तू एक लिख, मैं तेरा नाम डालता, मेरा नाम डाल, हो गया. ही प्रॅक्टिस आहे. पण याला अनइथिकल म्हणतात. म्हणून आता मला वाटतं युजीसीने म्हटलंय सोलो पेपर का मार्क अभी बढ़ेगा. सोलो लिखो. आप जो अभी पीएचडी कर रहे हो तो आपका गाइड भी बोलेगा भाऊ मेरा नाम डाल, बहुत डालना ही पड़ता, नहीं डाला तो बाबूजी का ईगो सरक जाएगा, बाबूजी ठप्पा साइन नहीं देगा, अटक जाएगा. हे होतं बरं का. याच्यात बरेच विद्यार्थी माझ्यासोबत चर्चा करतात, पण याचे उत्तर मी ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये देऊ शकत नाही आणि म्हणून मी गाईड बनत नाही. पण माझे असेही मित्र आहेत जे गाईड आहेत आणि ते त्या विद्यार्थ्याला म्हणतात बाबा माझं नाव नको टाकू, तू तुझं नाव टाक. तू केलं तर ही नैतिकता. म्हणजे तुम्ही जेव्हा गाईड बनाल ना, रूल नंबर 1, मिठाई का पाकिट, एनवलप, कुछ भी नहीं लेने का कैंडिडेट से. बोलने का काम कर, उसको पजाने का काम करने के लिए हटाओ और तू आगे चल के. त्याला पे इट फॉरवर्ड म्हणतात इंग्रजीमध्ये. एक प्रक्रिया सुरू करायची हो आपण, म्हणजे एक चांगला रिसर्च कम्युनिटी आपल्या देशात तयार होऊ शकेल आणि त्याची धुरा आपल्या खांद्यावर द्यायची आणि त्याच्यासाठी आपण आधी रोल मॉडेल बनायचं. पण बरेचदा सिस्टम हे करू देत नाही किंवा लोक आहेत असे अनेक लोक माझ्या ओळखीचे आहेत महाराष्ट्राच्या अनेक विद्यापीठात जे चूक करत नाही, इकडचे तिकडचे हलत नाही. व्हेरी व्हेरी इथिकल पीपल, व्हेरी सिनियर लेवल पीपल, आणि ते आदर्श आहेत. माझेही आदर्श आहेत, इतर विद्यार्थी. तो तुम्ही सुद्धा असे कोणाचे तरी आदर्श बना. और एक चीज होती है डिस्कसिंग विथ योर कलीग कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम अ पेपर दॅट यू आर रिव्ह्यू. मी न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलियाच्या CSRच्या 2 किंवा 3 जर्नलच्या एडिटोरियल बोर्डवर आहे. मी कधी कधी चर्चा करायचो. माझ्याकडे ऍबस्ट्रॅक्ट यायचा, त्यांची ती सिस्टम खूप चांगली. ऍबस्ट्रॅक्ट आवडला की लगेच क्लिक केलं की त्याचा पेपर ऑटोमॅटिक डाउनलोड होतो. मग मी कधी कधी जेव्हा इंडियन कॉफी हाऊस चालू होतं गुगल टेकचं, मी चर्चा करायचो, अरे तिकडची मुलं असा का विचार करतात, आपली मुलं का करू शकत नाही. इट इज अनइथिकल. मला जेव्हा हे कळलं, आय स्टॉप डिस्कसिंग एनिथिंग दॅट आय करंटली. कारण तो पब्लिश होत नाही जोपर्यंत. तो पब्लिश झाला की इट्स फाईन, पण आता फक्त मी त्याला कन्सेंट दिलाय की येस इट इज ऍक्सेप्टेबल फॉर पब्लिशिंग. सो आय एम नॉट अलाउड टू डिस्कस एनिथिंग बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज ए कॉन्फिडेंशियल डेटा अनलेस इट गेट्स पब्लिश्ड. देन जो मैंने आपको बोला, आप एक रिव्यू कमेटी के चेयरमैन हो या आदमी हो, आपके पास एक ग्रांट का प्रपोजल आया और आपको पता चला अरे ये मेथड बहुत सही है, ये आइडिया बहुत अच्छी है, आपने आपके भतीजे को दे दिया. अनइथिकल. सायन्सचे लोक हे लक्षात ठेवा, आप लॅबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो,
आप डेटा प्लॉट करते हो, कौन सा भी डेटा ये इन्वर्टेड बेल कर्व में आता है, तो आपको बेल कर्व में दो टेल मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जिसको हम 1 सिग्मा 2 सिग्मा बोलते हैं। तो कैंडिडेट क्या करता है, वो आउटलायर डेटा होता है ना टेल का, उसको हटा देता है। नका नका करू, ठेवा तसाच्या तसा, काही फरक पडत नाही, फक्त जस्टिफाय करा तसा डेटा का आला। आप डेटा से, स्पेशली साइंस के लोग सबसे ज्यादा शॉर्टकट लेते हैं। आप अगर मेरे को पूछोगे ना, साइंस वाले सबसे ज्यादा काया करते हैं, क्योंकि आपको क्या मालूम वो क्या कर रहा है एक्सपेरिमेंट, कितने बार कर रहा है, उसका डेटा सही है क्या, कैलिब्रेशन सही है क्या, कंज्यूमेबल सही है क्या, पोटेंसी सही है क्या, आपको कुछ हवा नहीं, वो ही करता। तो ये करने का नहीं। देन हे महत्वाचं आहे बरं का, बहुतेक विद्यार्थी इथे चुका करतात, मैं हिंदी में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते, वो क्या करता, डेटा आ गया, हाँ चल इसको ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा दे। अब उसको वो इसलिए लगाता ताकि उसका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो। हाँ, एक तो वो ऑब्जेक्टिव है, या तो उसको मालूम ही नहीं कौन से डेटा को कौन सी टेस्ट लगाने का। तो कई बार एक टाइप 2 एरर आती है, जो मैं आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा, तो वहां पे मैं इसको इलेबोरेट करूंगा। अभी सिर्फ ध्यान में रखो, इन अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाने का नहीं डेटा को, इतना याद रखो। इसलिए कल मैंने आपको बोला था, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप जाइए, हिस्लॉप कॉलेज में है, अपने विद्यापीठ में है, ऐसे कई लोग हैं स्टैटिस्टिक्स के, उनके पास बैठिए, उनसे समय मांगिए, हम्बल रहिए और सीखिए। उसके बाद भी अगर पता नहीं चला तो फिर एक्सपर्ट के पास जाइए, डेटा दिखाइए और उसको बोलना कौन सी टेस्ट लगाने का है, वो समझ लो। क्योंकि वाइवा के दिन अगर पूछा एग्जामिनर ने कि भैया यही टेस्ट क्यों लगाई, वो क्यों नहीं लगाई, आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। बिसाइड दैट, अगर आपने गलत टेस्ट लगाई और आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट के बजाय रिजेक्ट हो गया, ये पता किसको नहीं चलता है, तो गलती से किसी को पता चल गया, यू विल बी इन ट्रबल। स्पेशली जब आप ग्रांटेड रिसर्च के प्रोजेक्ट करते हो ना, वो पूरा चेक करते हैं, पूरा, उनको पता चलता है गलत टेस्ट लगा के हाइपोथेसिस को मार डाला इसने सही वाले को। हे पीएचडी मध्ये डिटेक्ट होणं मी इम्पॉसिबल म्हणेल, जनरली कोणी करत नाही, वायवे आपल्याकडे खूप कॅज्युअली होतात, पण जो एखादा सरकलेला आला एग्जामिनर, तो फिर आंखों में आंसू लाएगा आपके, तो वो अपने को फेस नहीं करना है। वी शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप दैट वी अंडरटेक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर रिसर्च, bypassing the peer review process. Then conducting a review of literature that failed to acknowledge. एक केस हुआ था, कोल्हापुर के एग्जामिनर आए थे, लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर देख रहे थे, लड़की थी, उसने किसी का नाम देखा होगा लिटरेचर रिव्यू में, बिब्लियोग्राफी में नाम नहीं छपड़ा, ये बाबा जी गुस्सा आ गए, उसने वाइवा रोक दिया आधे घंटे के लिए, फिर उसको मनाना पड़ा, वो लड़की को रोना पड़ा, हंगामा हो गया। मग कशाला करायचे, मी तिथे बसलो तो, मला तर कळतच नव्हतं की याच्यात हसावं की रडावं, पण भीती त्या मुलीची वाटत होती की ते उगाच काही झालं नाही पाहिजे, मग ते सगळं प्रकरण सावरून मग नंतर मी तिला खूप झापलं, बहुत झापा उसको, बोले सब जाने के बाद, मूर्ख है मतलब तू, आपका लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर 10 बार रिव्यू करना, अब जो प्रोटोकॉल मैं खुद फॉलो करता हूँ मैं फुटनोट में डालता हूँ। मुझे मालूम नहीं कि आपके पीएचडी में गाइडलाइन क्या कहती है, आपकी पीएचडी की गाइडलाइन कहती है फुटनोट में डालो, तो वो सबसे अच्छा, क्योंकि वो पेज पे वो नीचे आ जाएगा। पर अगर गाइडलाइन बोलती कि बिब्लियोग्राफी में डाल, दोन्ही प्रोटोकॉल ऍक्सेप्टेड आहे, फक्त तुम्हाला काम करते समय तुमच्या युनिव्हर्सिटीने दिलेले प्रोटोकॉल फॉलो करायचे हे लक्षात ठेवा। मी म्हणतो म्हणून नका करू। आपकी यूनिवर्सिटी बोलती है कि बिब्लियोग्राफी में डाल, तो जैसे ही आप कुछ करोगे उसको येलो या रेड कलर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाईलाइट करने का, अलग अलग कलर से, और तुरंत बिब्लियोग्राफी के वर्ड खोल के उसमें डालने का। कभी कभी एखादा आदमी आके देखता है, वो गलतियां होती है, सबसे होती है, वो गलती मत करना, उसको भी अनइथिकल माना जाता है। काय को आप दूसरे को मौका दे रहे हो आपकी आंखों में आंसू लाने का, आपके पास 5 साल है ना, 5 साल कम नहीं होते, हाँ, अच्छा काम करने का, गलतियां नहीं करने का। होगी तो वो बात का बाद में देखा जाएगा, अगर जानबूझ के नहीं हुई तो वो देखा जाएगा, बट डू नॉट डू। एखादी सापडते, पण 2-4 सापडल्या तर मग पारा टाकून जातो, नका करू। स्ट्रेचिंग द ट्रूथ ऑन ग्रांट एप्लीकेशन, ये जो ग्रांट के लिए अपन अप्लाई करते हैं ना, और झूठ उसमें डालने का नहीं कि मैंने फलाना किया, मैंने फलाना किया, मत, कभी ना कभी इनको पता चलता है, हाँ, सो डू नॉट डू दैट। देन ऑल्सो आप जब किसी बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, अपने सीवी या करिकुलम वेटा में झूठ मत डालिएगा, या सच्चाई को ज्यादा मत खींचो, क्योंकि किसी को भी वो पता चल सकता है। हे
तुमच्या कामाचं नाहीये. हाँ, देन मेकिंग सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द रिसर्च प्रोटोकॉल. मतलब आरआरसी ने आपका सिनॉप्सिस अप्रूव किया है, आपका पूरा पीएचडी का थीसिस सिनॉप्सिस के लाइन पे ही चलना चाहिए. आपने प्रपोजल फॉर ग्रांट डाला, आपने काम करते समय वो प्रपोजल के हिसाब से ही काम करना चाहिए. देयर शुड नॉट बी सिग्निफिकेंट डेविएशन. डेविएशन होगा, मैं ये नहीं कहता कि 100% आप कर पाओगे, नाही, इम्पॉसिबल आहे. पण सिग्निफिकंट डेविएशन करू नका, त्यालाही अनइथिकल मानलं जातं. देन सॅबोटेजिंग समबडीज वर्क, स्टीलिंग सप्लाय बुक, राम नाम जपना परामाल अपना मत करो. किसी डेटा की अनऑथराइज कॉपी मत करो. किसी कंप्यूटर प्रोग्राम, जो मैंने आपको बोला था, इवन म्हणजे आता बघा टेक्निकली मला माहिती नाही तुमच्यापैकी किती लोकांकडे वर्डचं लायसन्स आहे, पण मी एक बॉलपार्क म्हणतो 50% लोकांकडे नसेल. तर आपण जी मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये आपण जी सबमिट करतो आपली सॉफ्ट कॉपी, तिथं असते ना, त्याला सांगता येईल की ही अनऑथराइज कॉपी आहे. आपला देश गरीब आहे साहेब, आपण ते लायसन्स घेऊ शकत नाही. पण जे लोक श्रीमंत वगैरे आहेत ना, ते घ्या. हे माझं एक वेगळं मशीन आहे, आम्ही त्याच्याकरता लायसन्स घेतलंय प्रोजेक्टच्या पैशातच, पण आम्ही मग त्याच्यावर करतो. बाकी हे जे तुम्ही बघताय याच्यामध्ये लायसन्स नाहीये. फार्मास्यूटिकल कंपनियां कई बार क्या करती है, वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को ओवर एस्टिमेट करती है. जैसे ये अभी इफिकेसी आई, आज पेपर में फिर से मैंने पढ़ा कि स्पुतनिक 5 की एफिकेसी भी 95% हो गई. वी रियली डोंट नो, सही में होगी तो अच्छा है, नहीं होंगी तो फिर वो सिग्निफिकेंस ओवर एस्टिमेट किया गया उसका. सो फार्माकोलॉजी के लोगों को ये ध्यान में रखने का है कि किसी भी ड्रग का डेलिबरेटली ओवर एस्टिमेट मत कीजिए उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. ये लक्षात ठेवा. एंटायर प्रेजेंटेशन की ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आएगा. अब ये जो होता है इसके कई पहलू हैं. नहीं समझा तो मेरे को तुरंत पूछना, मैं अभी आपका डाउट क्लियर करूंगा. अब ये एरर होती है फेल्यूर ऑफ द रिसर्च डिजाइन. एक, इसका मतलब आपने जो रिसर्च डिजाइन किया है उसमें फेल्यूर है ऐसा माना जाता है. अब क्या होता है, आपका डिजाइन फॉल्टी है और आपसे टाइप 2 एरर बन गई है जो कि अनइथिकल है. वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके रिसर्च प्रॉब्लम में जो नल हाइपोथेसिस था H0, एक नल होता है और एक H1 होता है अल्टरनेटिव. आपने क्या किया, जो कि आपका डिजाइन फॉल्टी है या इनएप्रोप्रिएट है, आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि इन रियलिटी में वो फॉल्स है. म्हणजे चुकीचा नल हायपोथेसिस एक्सेप्ट करणं याला आपण टाइप 2 एरर म्हणतो. आता ही टाइप 2 एरर का होते? एक, तुम्हारा रिसर्च का डिजाइन गलत हुआ है और आपने जो नल हाइपोथेसिस है यू फेल टू रिजेक्ट इट जेन्युइनली. तो एचओ वाकई में करेक्ट है क्या, या आपने जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाई है वो सही नहीं है. सो एज ए पीएचडी रिसर्च स्कॉलर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आपका रिसर्च फॉल्टी है, आप तो डर जाओगे, आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी, अरे यार सर क्या बोल दिया आपने, और ये मैटर छोड़ दो, आपका डिजाइन बन गया. जिन लोगों का बना नहीं है वो ध्यान में रखो इसको. जो लोग अभी पहिली पायरीवर आहेत त्यांनी लक्षात ठेवा, पण जे लोक सबमिशनच्या वाटेवर आहे, आता जे झालं ते गंगेत घोडं नहालं, पण जाके एक बार चेक करो आपने जो डेटा को टेस्ट लगाई है, क्या उसकी पावर इनएडिक्वेट है, और वो इनएडिक्वेट पावर के वजह से जो H0 आपको रिजेक्ट करना था आपको उसने एक्सेप्ट कर लिया. आता याचं सोल्युशन काय, हे सगळं करा. मी माझ्या प्रत्येक लेक्चर मध्ये आम्ही 2018 पासून प्री पीएचडी घेतोय. ही बहुतेक तुमची 35वी की 40वी बॅच असेल. म्हणजे आम्ही दर महिन्याला घेतो, एक एक 2-2 बॅचेस होतात. प्रत्येक याच्यात मी म्हणतो तुम्ही जे हाइपोथेसिस चेक करने वाले हो ना, अब एक काम करने का आपको अगर 3 पॉइंट मालूम होगा कि ये डेटा को यही टेस्ट लगती, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आप वही टेस्ट लगाएंगे. पर आपके मन में थोड़ा डाउट है, अरे यार ये भी लगती, क्या करूं, ऐसे एक काम करने का,
3 टेस्ट लगाने का, कितनी, 3 स्टैटिस्टिकल टेस्ट, और तीनों का इंटरप्रिटेशन, हाइपोथेसिस कितने आपके 5 या 6 होंगे ना, क्या फर्क पड़ता अगर आपने 18 टेस्ट लगाई उनको, तो हर एक हाइपोथेसिस को 3 टेस्ट लगाई आपने, आए। अब 3 में से आपको 2 रिजल्ट एक तरीके मिले, नीचे लिखने का, गिवन द इंट्रिकेट नेचर ऑफ द डेटा, द रिसर्चर हैव डिसाइड टू अप्लाई द 3 statistical tests in the nearest peer, and the analysis of the test done on the set of data implies that 2 out of 3 tests are pointing towards phalana and phalana. Hence, with the higher level of confidence, the researcher can say that null hypothesis is accepted. किती चांगलं होईल हो कोणी असं लिहिलं तर, मला खूप आवडेल. एकामध्ये तुमची चुकी होऊ शकते, 3 मध्ये चुकी नाही होणार, कारण 3 मध्ये एक तर 3 पैकी 2 करेक्ट येतील, किंवा 3 पैकी 2 इनकरेक्ट येतील, किंवा 3ही करेक्ट येतील, किंवा 3ही इनकरेक्ट येतील. I am looking at 2 out of 3 probability, and whichever way it goes, I am accepting, so that I am safe, so that the examiner cannot say, Atale, you have done type 2 error, you are fool. No. आता आम्ही जे रिसर्च करतो ना, आम्ही 3च टेस्ट वापरतो. जरी आम्हाला किती कॉन्फिडन्स असेल की यार इसको यही लगती, असा कोणताही नियम नाहीये की ये डेटा को यही सेट लगती. शेवटी स्टॅटिस्टिक्स इज अ टूल है यार. वो चक्कू, उससे आप सब्जी काटो, मटन काटो, या किसी का गला काटो, वो कैसा इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर चक्कू का यूज है. तो स्टैटिस्टिक के टेस्ट जो भी है, आप कैसे इस्तेमाल करके वैसा उसका आउटकम आएगा. मेरे लिए तो मेरा हाइपोथेसिस, ये पूरे मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम की ये पूरी व्हॅलिडिटी क्वेश्चन में लाएगा अगर मैंने सही हायपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो. म्हणून लक्षात ठेवा, कृपा करून ही नम्र विनंती आहे, नाही केली तरी तुम्हाला डिग्री मिळते हो. शेवटी काम जर समाधानपूर्वक तुम्ही केलं तर दिवसाच्या सरती तुम्हाला वाटेल की हाँ यार मेरी जितनी औकात थी, बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैंने जस्टिफिकेशन किया है मेरे पीएचडी को, ऊपर वाला अल्लाह जाने. हे समाधानकारक सुद्धा चांगलं आहे. सगळ्यांनीच करावं असं मी म्हणत नाही, पण हे केलं तर तुम्ही अडचणीत येऊ शकत नाही. अडचणीत येणार का याची काही गॅरंटी नाही. एग्जामिनरला कळूच शकत नाही तुम्ही टाइप 2 एरर करताय म्हणून. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसको. अगर वो भौतिक कीड़ा रहा तो वो कर सकता है. अब मैं आपको एक मेरा लाइव एग्जांपल देता हूँ. एक वाइवा में मैं बैठा था, एग्जामिनर आए थे, बड़े सीनियर थे, बुजुर्ग थे, सफारी सूट पहन के आए थे, हाफ शर्ट, वो सफारी सूट होता है, बैठे, वो सीनियर थे. वो आए थे राजस्थान से, वो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे. ठीक है, आए, आ गया वो कैंडिडेट. तो वो कैंडिडेट को पूछा, तूने काय स्क्वेयर टेस्ट लगाई है? बोले हाँ. तो उसने कैंडिडेट को पूछा, काय स्क्वेयर टेस्ट के लिमिटेशन बता. मला तिथे शॉकच लागला, कारण मला सुद्धा माहित होतं काय स्क्वेयर टेस्टची लिमिटेशन काय. तो जब ऐसा कोई एग्जामिनर सवाल करता है तो कैंडिडेट अपने गाइड को देखता है, गाइड चेयरमैन को देखता है, चेयरमैन एक्सटर्नल को देखता है, पता चला इसको जवाब नहीं आ रहा. वाइवा वगैरह हो गया, उसको अवार्ड बोल दिया. बाहर आके मैंने वो सर को पूछा, बोला सर मुझे भी नहीं मालूम, आपने जो सवाल पूछा उसका. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा साहेब, एखादी गोष्ट येत नसेल ना तर कमी स्वतःला लेखायचं नाही. मी स्वतःला अजूनही विद्यार्थी समजतो, मला अनेक गोष्टींचं नॉलेज नाहीये, आणि मी अगदी प्रांजळपणे कबूल करतो, किती मोठा किंवा किती लहान. म्हणजे मला माझ्या एमबीएच्या मुलाकडनंही बरंच काही शिकायला मिळतं. मी म्हटलं सर ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम, क्या आप मुझे बताओगे क्या है? तो बोले बेटा व्हेन n becomes more than 25 I square become invalid. मैंने उनको बोला सर आर यू जोकिंग, हम तो 1400 सैंपल पे काय स्क्वायर लगा रहे, तो n तो 1400 हो गया. तो बोले यही सबसे बड़ी फॉलिसी है, इनवैलिड नहीं होता, उसका रिलीवेंस खत्म होता. मैंने कहा सर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है दूसरी टेस्ट लगाने का. त्या दिवसानंतर मी घरी येऊन प्रत्येक स्टॅटिस्टिकल टेस्टचे लिमिटेशनच अभ्यासले, आणि बऱ्याच टेस्ट मध्ये लिमिटेशन आहेत बरं का, विथ रिगार्ड टू सैंपल साइज. इसलिए ध्यान में रखो, मैंने जो आपको बोला कि आपको 888 के ऊपर के सैंपल लेने हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए. अभी भी हम काय स्क्वायर इस्तेमाल करते, बट लिख देते वहां पे, it is noted that chi-square has a limitation of n is equal to 25, but given the nature of research and given the suitability of the appropriate statistical test, the research team has selected this as a test. Hence, its results should be interpreted in a fairest level of confidence. खत्म. ये नोटिफिकेशन दे दो, तुम्हारे कंधे का बोझ खत्म. कल आके कोई मेरे कंधे पे बंदूक नहीं लगाए, भैताड़ा का तू ही टेस्ट लावली, मूर्ख है का तू. साहेब मला माहिती आहे
मी तिथे नोटिफिकेशन दिलेलं आहे की असं होतं आणि याच्या व्यतिरिक्त मला दुसरी टेस्ट लावायची नव्हती, काम खत्म. तो जिन लोगों को आगे भी रिसर्च करना है ना, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स से प्यार बढ़ाओ. अब मैं इंजीनियर हूँ तो हमको मैकेनिकल में एक सब्जेक्ट था स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, तो तब जितना भी हमको समझा है फॉर्चुनेटली तब बहुत अच्छे से समझ में आया था. अभी एमबी वालों को भी स्टैट का सब्जेक्ट है, तो आपको अगर स्टैट से कहीं पाला पड़ा होगा तो उससे थोड़ा प्यार करो और प्यार बढ़ाओ. मैं कहूंगा सभी का प्यार स्टैट से होता नहीं, वो टूल है, एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर इज योर टाइटल, योर हाइपोथेसिस, योर मेथड, दैट मैटर्स टू मी एज अ रिसर्चर. मैं किसी भी रिसर्चर को जज नहीं करूंगा कि तू जीनियस है स्टॅटिस्टिक्स में, नहीं, वो सब्जेक्ट में जीनियस होना चाहिए. ये सिर्फ टूल आहे. म्हणजे तुमच्या घरी आलेल्या सुनेनी खूप चांगला स्वयंपाक केला पण तिच्या सासूनी त्याची व्यवस्थित मांडणी केली तर सासू सुनेला खाली दाखवू शकत नाही की तुला डावं उजवं कळत नाही. नाही, तिने स्वयंपाक बनवला ना तर तिच्या पाककला नैपुण्य आहे तिच्याकडे. सासूनी फक्त मांडणी केली, म्हणजे सासूला माहिती आहे कसं त्याला ताटात प्रेझेंट करायचं. सो मैं सुनेलाच मी माझे मार्क देईन, सासूला देणार नाही. तर हे स्टॅटिस्टिक्स ही सासू आहे, याला आपल्याला थोडं जमवून घ्यावं लागेल. जितकं जमता येतं तुमच्या कॅपॅसिटीमध्ये तेवढं जमवा, बाकी का राम भरोसे. जिनको आगे रिसर्च करना है आपको स्टैटिस्टिक्स से शादी करनी पड़ेगी, जिनको नहीं करना है भूल जाओ, बेवफाती करके भूल जाओ आपका नोटिफिकेशन आने के बाद. कम टू पब्लिकेशन, आप लोगों को नॉर्म्स है, शायद 1-2 पेपर पब्लिश करने पड़ते साल में, करियर प्रोग्रेशन के लिए, ग्रांट लेने के लिए करने पड़ते, टेनियर के लिए, और आपकी प्रायोरिटी आपके एरिया ऑफ रिसर्च में बताने के लिए कि मैं इस फील्ड का जानना माना हूँ, तो आप पब्लिश करोगे. तो पब्लिश करते समय अब इसमें आपका रिसर्च पेपर भी आता है और आपका रिसर्च थीसिस भी आता है. वन शुड नॉट चीट एंड फॉल्सिफाई द डेटा, वन शुड नॉट प्लेगराइज. प्लेगरिज्म मतलब टेकिंग अनदर समबडीज वर्क एंड पासिंग इट अप एज योर ओन. अगर मैं सोशल साइंस की बात करता हूँ और मैं एक आधा रिसर्च पेपर देख रहा हूँ या कोई किताब देख रहा हूँ, तो मुझे 500 वर्ड मैं वहां से लेके एज इट इज इस्तेमाल करूंगा और नीचे फुटनोट डालूंगा, एडॉप्टेड फ्रॉम सो एंड सो. आई एम नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन द वर्ड विच आई हैव कॉपीड, एज इट इज लेना है. रूल नंबर 1. अगर मुझे 1500 वर्ड लेने हैं तो मुझे ऑथर का ईमेल या रिटर्न कंसेंट, एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप, फोन पे नहीं, फोन का कोई बता नहीं सकता, वो बोलेगा किया था मैं नींद में था, नहीं. ईमेल कंसेंट लगेगा कि उसने परमिशन दी है, 1500 वर्ड आप यूज कर सकते हो. आपका जो भी स्ट्रीम है वो स्ट्रीम के आप कितने अलाउड है वो आप देख लो. ये पीएचडी के गाइडलाइन में नहीं आएंगे, बट एक जनरल आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा जनरल रिसर्च करते समय. आपको अगर 10-12 पन्ने लेने हैं तो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ प्लॅगरिझम. 10-12 तर घेऊ शकत नाही तुम्ही, तर त्याचं मी तुम्हाला सोल्युशन सांगतो. ते वाचायचे आणि आपल्या मनाने त्याचा एक शॉर्ट मध्ये आपलं राईटअप करायचं. असे फ्रिक्वेंट कट अँड पेस्ट केले तर कुठेही प्लॅगरिझम मध्ये सापडून जातात, त्याच्यामुळे ते टिपिकली अवॉइड करा. सो मेनी अ टाइम हम किसी का आइडिया लेते हैं और उसको एक्टिवेट नहीं करते. अभी जो नए इथिक्स के जो ट्रेंड आ रहे हैं ना सर लोग, आता लोक उगवत्या सूर्याला इन्स्पिरेशन म्हणतात, ते खाली लिहितात. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रियंका सारडा जी के साथ आज इंडियन कॉफी हाउस में कॉफी पीने गया शाम को 4 बजे और हमारे डिस्कशन में मेरे को एक आइडिया आ गई और आगे चल के मैंने उसके ऊपर काम किया, तो एज ए इथिकल प्रैक्टिस आई हैव टू मेक अ फुटनोट सेइंग दैट this idea was originated while having a cup of coffee with Priyanka Sarda ji on 20th of April, Indian Coffee House, Nagpur, India, 4:34 PM. ये लोग ऐसा साइट करता. एक चीज आप याद रखो, आपका कुछ भी नहीं है. हाँ, ये गीता में जो लिखा है ना, आप क्यों रो रहे हो, आपका क्या गया, आपको जो मिलना था आपको यही मिलना था, आपने जो लिया आपने यहीं से लिया, फिर आप क्यों रो रहे हो. तो वही नैतिकता के कंसेप्ट आपके इथिक्स में भी, आपके रिसर्च में भी आते हैं. आइडिया किसी से भी आ सकती है, मेरे को कुत्ते से आई, पेड़ से आई, आप साइट करो. अभी मैं जो पेपर देख रहा हूँ ना, लोग अशा भन्नाट आइडियाला साइट करतात. एक बार मैं अपने सुरेश भट्ट साहब है, उनका बेटा और मैं KG 1 से लेके इंजीनियरिंग तक इकट्ठे पढ़े, तो मेरा उनके आना जाना था. और जब मैं विदेश में गया तो मेरे को भट्ट साहब के जो गाने थे,
तरुण आहे रात्र जुनी पहाटे पहाटे, ये सब समझने लगे. तो मैं जब भी इंडिया आता था तो मैं भट साहेब को पूछता था याचं इन्स्पिरेशन काय, हे तुम्हाला सुचलं कसं, हे तुमच्या डोक्यात आलं कसं. तर ते गोष्टी सांगायचे मला. तो ये जो कंपोजर होते इनको इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता ना. तो मुझे इंस्पिरेशन को साइट करना चाहिए. दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इथिक्स, हाईएस्ट. करा जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल एखाद्या तुम्ही, आणि हे खूप लोक अप्रिशिएट करतात. तुमचं स्वतःचं काही नाहीये. हे जे तुम्ही पीपीटी बघताय ना, याच्या शेवटी एक नोटिफिकेशन आहे, याचं माझं काही नाहीये. काही शब्द माझे आहेत, अरेंजमेंट माझी आहे, स्ट्रक्चर माझं आहे, बाकी माझं काही नाही. मैं खुलेआम सबको देता हूँ, जिसको जो लेना हो लो. मेरे को लोग बोलते हैं अरे ले भैया मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बनाने वाला हूँ, देने वाला वही है, मेरा कुछ नहीं. मग त्याच्यामुळे मग ते इगो फिगोचे प्रॉब्लेम काही आहेत. अगदी बिंदास ज्ञान तुम्ही जितकं वाटाल तितकं वाटतं. आपल्याकडे लोक बारीक में काम करते, अबे मैंने बताया तो ये मेरे सर पे चढ़ जाएगा. बहुत अपने लोग बहुत कम्युनिस्ट तरीके से काम करते. पश्चिमात्य सोसायटी ओपन आहेत बरं का, मी सगळ्या नाही म्हणत, बरं दे शेअर. इफ यू शेअर वी कॅन ब्रिंग अप द गुड इन अवर ओन सोसायटी. तो ते खुदा ते ठेवा. ओरिजिनल सोर्स अगर आपको मालूम नहीं होगा डजंट मैटर. सो मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, ये स्लाइड पे जो थी, से फॉर एग्जांपल आगे वाले स्लाइड में आएगा, उसके पहले और एक देता हूँ. आप जितने भी स्टैटिस्टिक ग्राफ टेबल नंबर जो भी आप इस्तेमाल करने वाले हो उसका सोर्स आपके उसी चीज में दीजिए, उसी पेज पे दीजिए. कितना लेना है ये मैंने कल आपको बताया था, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. देन कोट, इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको लाना चाहता हूँ. से अगर आप एक किताब पढ़ रहे हो और वो किताब में लिखा था कि महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड ऑन 31st of January 1948. नाउ देयर आर सर्टेन थिंग विच आर इन अ पब्लिक डोमेन. सो आपके मन में सवाल आएगा कि मैं उस किताब को कोट करूँ या उस न्यूज़पेपर को कोट करूँ या उस वेबसाइट को कोट करूँ क्या, साइट करूँ क्या. You can do it, but if you don't, it is not unethical because it is in a public domain. वैसे ही आप अगर किसी का लेते हो बोला हुआ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर वो राहुल गांधी 2019 में कस्तूरबा पार्क पे आया था, बोला था चौकीदार चोर है. तो कोर्ट लेते समय आपको याद रखने का है, अगर आपने कहीं पढ़ा और किसी टेक्स्ट बुक जर्नल पेपर या वेबसाइट से आप ले रहे हो तो एज इट इज आपको लेना है. बट आप अगर कस्तूरबा पार्क के वो सभा में थे उस दिन मई के महीने में और आपने राहुल गांधी को आपके सामने सुना तो आप उसके विटनेस हो, तो उस समय आपको अलग कोटेशन मार्क में उसको डालने का है. तो वो आपको याद रखने का, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने अगर कोटेशन मार्क में नहीं डाला तो वो लोग सोचेंगे कि अरे यार ये तो इसने खुद का स्टेटमेंट, अगर आपने लिख दिया बिना कोटेशन में तुम मुझे खून दो तो लोग वास्तव की अरे ये तो सारिका नायडू का स्टेटमेंट है. नहीं, वो कोटेशन में रहेगा, साइट होगा तो पता चलेगा ये नेताजी ने बोला था और ये जगह उनको ये पता चला. कोटेशन अपने थीसिस में ध्यान से रखना, स्पेशली लिटरेचर हिस्ट्री, थोडे बहुत मॅनेजमेंटचे लोक, सायन्सचं मला तेवढं माहित नाहीये, सोशल सायन्स मध्ये फार कमी लागतं, पण हिस्ट्री वगैरे वाल्यांनी कोटेशन लक्षात ठेवायचं. देन पैराफ्रेजिंग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ डायरेक्ट कोट. अब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुमने इसके बीच में स्टोरी डाल दी. On the 30th day of the October, Netaji had a good cup of Darjeeling tea. He wore his dress and he came on the street in front of his honored soldier. He said to me, अबे तू होता का तिथे, तू त्याले चहा दिला का. लोग इसको पैराफ्रेज करते, डायरेक्ट कोट डाल, कहानियां डालते. ये कहानी तेरे को कहां से पता चली, उसने दार्जिलिंग का चाय पिया, कपड़े पहन के बाहर आए. लोग लिखते हैं क्या. दिस इज अ कॉमेडी बट दिस इज अनइथिकल. Anything that you don't know, you should not make an adventure of mentioning it because it might catch you in a trouble. कि इसका source क्या है, right? So always make sure that direct quotation is fine, but with the citation. क्योंकि आपने citation नहीं दिया तो आप ट्रबल में आओगे. आपने पैराफ्रेज किया तो तुरंत पता चल जाएगा किसी को, अरे यार ये झूठ बोल रहा है, झूठ रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है. Kindly do not do that. Okay? Then, हाँ, कई बार प्लेगरिज्म इंटेंशनल नहीं होता है, गलती से हो जाता है. कुछ बार कैंडिडेट कोटेशन मार्क डालने में भूल जाता है, टाइपिंग नहीं आता है, किसी और से टाइप करता है या ओवरलुक हो जाता है.
इट इज ओके, एक दो तीन एरर सबके थीसिस में मिलेगी, बट जब आप बड़े लेवल पे काम करने जाते हो, काइंडली मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू इट पर्पसफुली। ओवरलुकिंग सबसे होता है। सो वाइल रिव्यूइंग, स्पेशली हिस्ट्री के लोग वगैरह, आपका थीसिस रिव्यू करते समय कोटेशन मार्क के ऊपर और जो भी आपने पैराफ्रेज किया हुआ है उसके ऊपर स्पेशली ध्यान दो, बिकॉज कई बार आप बार बार किसी चीज को कोट कर रहे हो, तो कोणी आंबेडकरवादी विचारांबद्दल संशोधन प्रबंध करत असेल तर आंबेडकरांची असंख्य वाक्य त्याच्यात येतील, तर प्रत्येक वाक्य कोटमध्ये असावं, तुम्ही त्यांचं वाक्य म्हणून आपल्या नावाचं वाक्य त्यांच्या नावात चिपकवू नाही शकत. सो दोज हु आर डूइंग केस स्टडी इन हिस्ट्री और फिलोसॉफी और एनी अदर टॉपिक, इवन मैनेजमेंट भी मैं बोलता हूँ, बी कॉशियस अबाउट इट. ये फाइन है. हाँ, पब्लिक नॉलेज जो मैंने बोला था, अब महात्मा गांधी असैसिनेट हुए थे मालूम है, अब उसमें आपको एक्नॉलेज करना नहीं करना डजंट मैटर. हाँ, JFK का मर्डर हुआ था, असैसिनेशन, वो भी पब्लिक डोमेन में. राजीव गांधी का 21 मई 1989 को हुआ था, पब्लिक डोमेन, यू आर फ्री टू गो विदाउट एनीथिंग. बट अगर आपने कहीं पढ़ा कि महात्मा गांधी जी को चक्कू मारा गया था, बुलेट नहीं मारी गई थी, आपको साइटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बिना साइटेशन डाला तो लोग बोलेंगे ये क्या है, आपको कहां से पता चला, आपको वाकई में मालूम नहीं गांधी जी को चक्कू लगा था या बुलेट, आपको जो लिखा वो आपने डाल दिया, साइटेशन भी नहीं डाला. और आपने अगर साइटेशन डाल तो बोलेंगे अरे सर ये साइट पे लिखा था, मुझे मालूम नहीं, मेरे को लगा ये सच होगा, तो आपने साइटेशन डाला तो आप अनइथिकल प्रैक्टिस से बच जाओगे. बट आपने साइट नहीं किया उसको, आपके ऊपर बंदूकें खड़ी होंगी, ये क्यों डाला, कहाँ से डाला, क्या सोर्स था, जानबूझ के डाला, तो तसं नका करू. पब्लिक नॉलेज हे पब्लिक नॉलेजच ठेवायचं. हं, त्याच्यामुळे मी परत सांगतोय, इतिहासातले लोक थोडं लक्षात ठेवा. अब मेडिकल रिसर्च की जब हम बात करते हैं, कई बार ह्यूमंस और एनिमल पे ट्रायल दी जाती है. पिछले ही बैच में एक लड़की थी, वो बोली सर हमको कंसेंट देना पड़ता है, मग ती कमिटी देत नाही, मग आम्हाला एक्सपेरिमेंट करता येत नाही, या अडचणी तिने मला सांगितल्या, मलाही माहित नव्हतं, इट वॉज अ न्यू थिंग टू मी. बट जो लोग भी साइंस रिलेटेड या स्पेशली बॉटनी, जुओलॉजी, फार्माकोलॉजी रिलेटेड कर रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स आर इन्वॉल्व है, वहाँ पे इथिकल प्रिंसिपल फॉलो करना अनिवार्य है. राइट, जहाँ पे जैसे अभी कोरोना, ये जो कोवैक्सीन का टेस्ट नागपुर में होने वाला था ना, मेरे यहाँ NMC के लोग आए थे, बोले थे कि आप वो सैंपल ग्रुप में आते क्या, तो मेरे को सवाल पूछे, मैंने हो बोला, पर मेरे घर वालों ने मेरे को मना किया, नहीं तो मैं जाने के लिए तैयार था. तो वो ट्रायल थी, उसमें कुछ आपको ड्रॉबैक उन्होंने सब बताया मेरे को, ये होगा, ये हो सकता है, क्योंकि तब सैंपल मोड में चल रहा था. ये पिछले जुलाई अगस्त की बात होगी या सितंबर की बात होगी, गणपति के आसपास की. तो कई बार एक दवाई का ट्रायल जब होता है तो प्रॉपर कंसेंट लेना जरूरी होता है. उसके ड्रॉबैक, उसके शॉर्टकमिंग, उसके साइड इफेक्ट, उसका मॉनिटरी कॉम्पोनेंट्स भी बताना जरूरी होता है. जब भी सोशल या बिहेवियरल साइंस की बातें आती है ऐसे रिसर्च में, तो कॉम्प्लेक्स इथिकल इशू आते हैं. जैसे सरोगसी गुजरात में बैन कर दिया क्योंकि कई सारे इथिकल इशू आ गए, उसमें मेडिकल साइंस भी इन्वॉल्व था, बिहेवियरल साइंस भी इन्वॉल्व था, दलाल लोग भी इन्वॉल्व थे, ये अनइथिकल है. इसीलिए it requires a careful thought and consideration on both the part of researcher and participant. दोनों को इक्वली अवेयर होना चाहिए. एक इंडिया में केस हुआ था, मेरे ख्याल से सैनोफी नाम की या सैंडोज नाम की कंपनी थी, जिन्होंने कैंसर का एक ड्रग था, उसका ट्रायल लिया था, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. इन्होंने सब अनपढ़ गवार लोग लाए थे. अब जब किसी ड्रग का ट्रायल होता है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो त्यांचे कागदावर अंगठे घेतलेत, त्या बिचारांना काही पैसे दिलेत, आणि त्याच्यापैकी बऱ्यापैकी लोक मेले, बरेच नाही, लोक मेलेत, आणि ते लाइमलाइट मध्ये आले की ट्रायल ड्रग में इतने लोग क्यों मरे, तो पता चला कोई दलाल था कि उनको ब्लॅकलिस्ट किया गया. मोठ्या कंपन्या सुद्धा अनैतिक कामं करतात बरं का. म्हणून मी म्हणतो नैतिकता ही फार कमी आहे सध्या जगामध्ये, सगळ्याच कंपन्या अनैतिक पद्धतीने व्यवसाय करतात. म्हणून इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट ये जरूरी है. स्पेशली इन लोगों को जो ह्यूमन और एनिमल पे ट्रायल करते हैं, जस्टिफिकेशन बताना जरूरी है. दे शुड ऑल्सो हैव एक्सेस टू पार्टिसिपेंट प्राइवेसी, वो भी एक इथिकल इशू आता है. उनका इन्फॉर्म कंसेंट सब बताने के बाद वो अगर हाँ बोलते हैं तो वो इथिकल माना जाएगा. और पोटेंशियल हार्म, उसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे वो भी बताना जरूरी है. इन रियलिटी ऐसे बहुत कम लोग बताते हैं. एक डॉक्टर वॉन्ग थे कोरिया के,
उनका एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकला, और वो स्कैंडल ये था कि फरवरी 2004 में उन्होंने 3 क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो बनाए थे, उसके टीम ने डिक्लेयर किया था, और रातों रात ये हीरो बन गया था। 2005 में उनके टीम ने बोला था कि they made these stem cell lines from the skin of 11 people, right? In 2005, same year, he apologized for using the egg from his own researcher. और दिसंबर में वो उनके टीम के एक कलीग ने बोल दिया ये पूरा रिसर्च फेक था, फैब्रिकेटेड। फिर एक कमिटी बिठाई गई और कमिटी ने 8 दिन में बताया ये पूरा रिसर्च फैब्रिकेटेड था। डॉक्टर वॉन्ग एक जो रातों रात हीरो बने, वो 1 साल के अंदर वो जीरो बन गए, क्योंकि उन्होंने पूरा लेबोरेटरी में फैब्रिकेट किया था। सो पैनल ने ये कमेंट किया कि दिस इज अ सीरियस रॉन्ग डूइंग दैट हैज डैमेज्ड द फाउंडेशन ऑफ साइंस। ही वाज वंस अपॉन हेल्ड एज अ हीरो, बट नाउ ही हैज बिकम जीरो। सो इसीलिए मैं साइंस वालों को फिर एक बार अलार्म करता हूँ कि फैब्रिकेट मत करो कोई भी डेटा। आप में हिम्मत होनी चाहिए, जैसा डेटा आ रहा है वैसा लो। अपन सिर्फ पीएचडी की बात कर रही है, आगे चल के आपको जो करना है वो आप इथिक्स के हिसाब से डिसाइड कीजिए, बट पीएचडी में तो ये सब चीजें मत करो, बिकॉज वॉट एवर इज द डेटा, वॉट एवर इज द आउटकम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट डजंट अफेक्ट वेदर पीएचडी टू बी ग्रांटेड और नॉट ग्रांटेड। ऐसे भी लोग हैं जिनके पूरे रिजेक्ट हुए उनको भी मिली है, पूरे एक्सेप्ट हुए उनको भी मिली है। सो पीएचडी में कम से कम ये मत करो और आगे चल के बिलकुल मत करो। सो दिस इज दी लास्ट स्लाइड। आता एक्झॅक्टली 1:21 झाले, आपल्याकडे 9 मिनिटं आहेत। तुम्हाला कोणतेही प्रश्न असतील, हां याच्यावर परीक्षेत प्रश्न येतील। कलिगचं नाव टाकायचं नाही, प्लॅगरिझम करायचं नाही, कोट डबल कोट, पब्लिक डोमेन मधलं नॉलेज, इथिकल प्रिन्सिपल, ही स्लाइड जी आहे म्हणजे ही पीपीटी एकदा प्लीज निश्चितपणे वाचा, ही तुमच्या फक्त परीक्षेकरता नाही तर आयुष्यात सुद्धा कामात येईल आणि पुढे सुद्धा ही कामात राहील। आता कालपासनं ते आजपर्यंत जे काही प्रश्न असतील मनात, जे काही डाऊट्स असतील, अवश्य विचारा, आपल्याकडे वेळ आहे। Sir, good afternoon, sir. This is Girish here, sir. Yes. So when we write research papers, we always, refer to some of the literature written by some other researchers, and at times, like we, use the same quote, and we go for plagiarism check. So when there is a plagiarism check, it detects the, the whatever the things that we have quoted or copied it. Yes. Despite we have cited it, it's showing the plagiarism or more than whatever the limited percentage. So in that case, what should we do, sir? ओके, सो दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इन्होंने जो पूछा है ना, अक्सर क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू जब आप एखाद्या रिसर्च पेपर का लिख रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका रिसर्च पेपर 8 या 10 पन्ने का है, मैक्सिमम 14 पन्ने, वो बहुत ज्यादा हो गए, इंक्लूडिंग 1-2 पन्ने का आपका रेफरेंसेस, प्रिंसिपल रेफरेंसेस। मैं 10 पन्ने का पेपर, 1 पन्ने का आपका रेफरेंसेस, तो 9 पन्ने का आपका रिसर्च पेपर मान के चल रहा हूँ, जिसमें भी आपका लिटरेचर रिव्यू आएगा मैक्सिमम 1.5 to 2 A4 साइज पेजेस। अब क्या होता है, रिसर्च पेपर के लिए जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी से या लिटरेचर से हम कोई चीजें लिखने लगते हैं, और वो हम एज इट इज लेते हैं इंक्लूडिंग द कोटेशन मार्क, और वो जब प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर में जाता है वो उसको इंटायरली प्लेगराइज बोलता है। ये होता है क्योंकि मशीन को ये नहीं मालूम कि लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या है। मशीन का प्रोग्राम किसी इंसान ने बनाया हुआ है, बट मशीन भी सही है। तो अभी आपको एक चीज करना है, कल मैंने आपको क्या बोला था, यू हैव टू राइट लिटरेचर रिव्यू इन द पास्ट टेंस और द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये अगर बार बार आपका प्लेगरिज्म में अटक रहा है, मेरे साथ भी ये हो चुका है, मैंने उसको ओवरकम किया। मैं क्या करता हूँ, फलाना रिसर्चर हैज सेड दैट ही हैज यूज्ड द डेफिनेशन, असर्टिव्ह टेंस मध्ये त्याला लिहायचं, कमीत कमी कोटेशन वापरायचे, म्हणजे तुम्ही सापडत नाही, खत्म। इसका एक ही सॉल्यूशन है सर, कुलकर्णी सर, क्योंकि क्या होता है, आप अगर जेन्युइनली वो थ्योरेटिकल एंगल से वो लिखने गए ना, दैट इज द करेक्ट वे टू राइट लिटरेचर, यू आई एम नॉट डिनाइंग दैट, but it will trouble you for the plagiarism. So then you have to change your tactic, not to get into the trap, but at the same time being ethical is to either write in the past tense or in an assertive tense or in the present continuous tense. Done.
फिनिश Yes. होतं आहे. इट्स अ कम्प्युटर, वो फसत आहे, पण त्यांनी चिंता करायची नाही, त्याला आपल्याला बायपास करायचं. म्हणजे तुमच्या खिशात लायसन्स आहे, गाडीचा आरसी आहे, तुम्ही ट्रॅफिक रूल तोडला नाही तरी तुम्हाला पोलिसांनी पकडलं. पेलनी का वो पुलिस वाले को, मैंने कुछ किया नहीं, तू काय को मेरे को पकड़ रहा है, तो आपको वहां से बिना फाइन दिए निकलना आना चाहिए. तो ये टेक्निक है, बिना फाइन Yes. देके आपको निकलने का पैसा. गुड क्वेश्चन, Yes. Thank you, sir. थँक्यू. सर हॅलो सर, पुन्हा एकदा हा. सांगा ना, नाही समजलं मला. काय असतं हे बघा, आपण लिटरेचर रिव्ह्यू, ऍक्च्युली मला माहित नाही तुमच्या या 7-8 दिवसामध्ये लिटरेचर रिव्ह्यू आहे का. समजा नसेल ना, तर एक कोरोना वगैरे झाल्यावर एकदा घेऊया. मी याच्यावर आधी बरेच लेक्चर घेतले आहेत, पण समोर आता हे जे माझे कोअर बनले आहेत, मेथड आणि इथिक्स, मला सगळंच कव्हर नाही करता येत ना, त्याच्यामुळे मी हे प्रामुख्याने हे घेतो. काय असतं लिटरेचर रिव्यू म्हणजे काय असतं, जो द सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो. कल भी मैंने आपको बताया कि मेथड हो गई, डेफिनेशन हो गई, थेरीज हो गई, उसका आप एक जायजा देते हो समराइज फॉर्म में. मैं ये रिसर्च पेपर की बात कर रहा हूँ. पीएचडी थीसिस में वो 14, 15, 16, 17 पन्ने तक हो सकता है, डिपेंडिंग आपका टॉपिक कैसा है. नो मोर देन 15 पेजेस. बट इन अ रिसर्च पेपर where the quantum is only limited to 1.5 A4 page, there what the researcher tried to do is to take, because research paper ये बहुत कंसाइज फॉर्मेट में होता है, तो वो रिसर्चर क्या करता है, वो जो लिटरेचर में, सपोज मैं एक पेपर रिव्यू कर रहा हूँ, तो वो मैं एज इट इज कट पेस्ट करके डाल देता हूँ. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि मैं कोटेशन में डालता हूँ उसको और उसको साइट करता हूँ. पर आप जब इसको प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में चलाते तो बोलते यार तूने कॉपी किया उसको. तो ये डिटेक्ट नहीं होने के लिए क्या करने का, वो जो आपने कट पेस्ट किया हुआ है ना, उसको पास्ट टेंस में लिखने का. मिस्टर रॉबर्ट एडवर्ड ब्रैकेट 2003 in his research paper titled so and so has used the definition of customer satisfaction as this. संपलं. आणि मग 2015 वो रॉबर्ट एडवर्ड को नीचे साइड कर दो. आप अगर उसकी डेफिनेशन एज इट इज डालोगे तो आप प्लेगरिज्म के चक्कर में आ जाओगे. तो त्यांनी काय कळलं का मी काय म्हणतो, माझं कळतंय का तुम्हाला मेरा भी. हो सर, हो सर. हा, तर त्यांनी जे म्हटलं ते डायरेक्ट न घेता तो काय म्हणतोय हे सांगणं, मराठीमध्ये हे त्याचं उत्तर आहे. Got it? थँक्यू सर. हा. यस सर सर. इन शॉर्ट एक्टिव टेंस में ना लिखते हुए उसको पैसिव टेंस में लिखना ना डायरेक्टली. प्रिसाइजली. नहीं तो आप ओके. माने जाओगे जिम्मेवार उसका कॉपी करने के लिए, उसने ये किया है ऐसा लिखो ना, है ना. ओके. एनी मोर क्वेश्चन, बोलो प्रियंका जी. सर आप प्लीज एक बार इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बता सकते हो क्या है शॉर्ट में. हाँ, नहीं हाँ. समझा वो कंसेप्ट. देखो, हाँ देखो, कल जो हमने एक चार्ट देखा था, एक मिनट खोलता हूँ, मेरा स्क्रीन चालू है. कल हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का एक चार्ट मैंने आपको बताया था, राइट. अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में हमने देखा था, क्वालिटेटिव जो मेथड है वो आती है टू फॉर्मुलेट अ थ्योरी, और क्वांटिटेटिव जो आती है वो आती है टू चैलेंज अ थ्योरी. एक मिनट, आपको दिख रही है क्या ये स्लाइड, पहले बताइए. हाँ आर सर. यू एबल टू सी दिस स्लाइड. सो क्वालिटेटिव जो है इट इज यूज्ड टू फॉर्मुलेट द थ्योरी, ये मेरा कर्सर. एंड क्वांटिटेटिव जो है इट इज यूज्ड टू चैलेंज अ थ्योरी. कल मैंने इसका एग्जांपल क्या दिया था कि लड़कियां 10th और 12th में मेरिट में ज्यादा आ रही है, तो मुझे अटाले सर को एक थ्योरी बनानी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. यहाँ पे मुझे आइजैक न्यूटन की एक थ्योरी को चैलेंज करना है. अभी यही से हम जब आगे चलते हैं तो ये बनता है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव. फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. जनरल क्या था कि 10वीं 12वीं में लड़कियां मेरिट में आ रही है, तो मैं एक स्पेसिफिक थ्योरी बनाना चाहता हूँ, तो वो हो गई डिडक्टिव. और इंडक्टिव में क्या आता है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. सो आई एम ट्राइंग टू चैलेंज द थ्योरी ऑफ आइजैक न्यूटन. सो हियर what I am doing, the theory of Isaac Newton is there, but I wanted to postulate, conduct an experiment, formulate the hypothesis and check whether Sir Isaac Newton was correct. अगर he was correct तो मेरे hypothesis reject हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा yes, the theory of gravity is valid. On the other hand, I am making observation where lots of girls are coming into the merit,
So I form the hypothesis why they are coming into merit. I tie all the hypotheses together and give a very general in-depth explanation, and then I come up with a theory of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो to answer your question, आपको ध्यान में कैसा रखना है. अब मैं थोड़ा मेमोरी का एक्सपर्ट हूँ, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है. मैं क्या करूंगा, दो में से एक ही चीज याद रखूंगा. मैं दोनों याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो आप इधर डिडक्टिव याद रखो या इंडक्टिव याद रखो. उसमें से डिडक्टिव सिंपल है याद रखना, यूजिंग लॉजिक फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. इसका एग्जैक्ट उल्टा है इंडक्टिव. बस उतना ही याद रखने का है. और हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हम दोनों मेथड को इंटीग्रेट करते हैं सभी रिसर्च में. हम केवल एक मेथड फॉलो नहीं कर सकते. अगर आपको करना ही है तो आप कर सकते हो, होते हैं ऐसे केसेस. तो यू कीप डिडक्टिव इन माइंड और जनरल टू स्पेसिफिक. तो उसके लिए ये वाले चार्ट में ये याद रखने का, जनरल क्या है, क्वालिटेटिव. आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को उसको लिंक कर दोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा. जनरल टू स्पेसिफिक मतलब मुझे थ्योरी बनानी है, ऐसा उसको मेमोरी में डालने का. इनिशियली दिक्कत आएगी बट वो ध्यान में रह जाएगा आपके. ठीक है. ओके सर. एंड सर प्लीज एक बार नल हाइपोथेसिस कोई एग्जांपल के फॉर्म में समझाइए ना. नल हाइपोथेसिस यानी क्या होता है? देखो क्या होता है, जब भी हम अपने रिसर्च वर्क में हाइपोथेसिस बनाते हैं, आपने आपके सिनॉप्सिस में हाइपोथेसिस डाले होंगे. तो हम Yes. जब हाइपोथेसिस डालते हैं, हाँ, तो हाइपोथेसिस हम क्या सोच के डालते हैं, द एक्सपेक्टेड आउटकम. तो मान लो अगर मैं सोचता कि आज एग्जैक्टली हम 10:30 को चालू करेंगे और 12 को नून को ब्रेक लेंगे, ये मेरा हाइपोथेसिस था. इसको मैं कहूंगा नल हाइपोथेसिस. मतलब मेरी इनिशियल जो एक्सपेक्टेशंस है कि मैं शार्प 10:30 को चालू करूंगा, शार्प 12 को ब्रेक लूंगा, तो वो आज एग्जैक्टली वैसा हुआ. तो ये जो मेरा एग्जैक्ट इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको हम रिसर्च के लैंग्वेज में H0 बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस. मान लो अगर वो वैसा नहीं होता तो मतलब हम लेट चालू हुए, लेट खत्म हुए, तो उसका होगा नाम H1, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो क्या होता है, जब भी आप कोई हाइपोथेसिस को डेमोन्स्ट्रेट करते हो तो उस हाइपोथेसिस का नाम बाय डिफॉल्ट H0 रहता है, और उसका एग्जैक्ट अपोजिट हमें लिखना पड़ता है, उसको हम ऑल्टरनेटिव या H1 बोलते हैं. मतलब आज के एग्जांपल में मैं बोलूंगा कि आज अटाले सर 10:30 को चालू करेंगे, 12 बजे ब्रेक लेंगे, ये हो गया आपका H0. इसका H1 क्या आएगा, अटाले 10:30 को चालू नहीं करेंगे और 12 बजे तक ब्रेक नहीं लेंगे, ये हो गया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं आर्ट्स या हिस्ट्री वाली हो, शायद इसलिए आपके मन में ये सवाल आया. एम आई करेक्ट? नो सर, एक्चुअली मैं लॉ फील्ड की हूँ. हाँ, लॉ वाले हो क्या? ओके, हाँ, लॉ वालों को भी ये आता है. अब मुझे बताइए आपके, हाँ. क्योंकि जब येवले सर आ गए थे ना, सब लोगों को हाइपोथेसिस डालना मैंडेटरी किया था. अब मेरे कुछ विचार है, निखिल एज ए इंडिविजुअल फील दैट द हिस्ट्री लिटरेचर thesis should not have a hypothesis. This is what I feel. Why I feel? Because to me hypothesis can only be tested by statistics. But फिर भी आपको डालना है, जबरदस्ती डालना है, तो फिर वो बिना स्टैटिस्टिकली वो टेस्ट होते हैं. अब मुझे बताइए मैडम, आपने आपके इसमें क्या हाइपोथेसिस डाले? कोई सर भी माय एक hypothesis. सर माय टॉपिक इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग. हाँ, And one of my hypothesis is the legislative framework in India is not properly implemented, and so number of cases in human trafficking are increasing day by day. हाँ, तो प्रियंका जी ये हो गया आपका H0. ठीक है? Yes. ये हो गया H0. अगर मान लो एंड ऑफ योर थीसिस स्टडी आपको पता चला कि समहाउ लीगल फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट हो रहा है और केसेस कम हो रहे हैं, अगर ये आपको पता चल गया, तो आप क्या करोगी, यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड यू विल एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. गॉट इट?
यस एंड सर अगर मेरे रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि यस इन इंडिया लॉज आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड देयरफॉर नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग सो तो यू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस H0, यू Okay. एक्सेप्ट H0, मतलब Okay. आप सही थे, काम शुरू। अब इसका सेकंड स्टेप मैं आपको बोलता हूं। अब आपको स्टैटिस्टिकली ये करना है। आप एक काम कीजिए, लिकार्ट स्केल पे क्वेश्चनर बनाए। मुझे मालूम नहीं आपका प्रोग्रेस कितना हुआ है। अगर आपने इन-डेप्थ स्टडी करके अगर बोल दिया कि हाँ, whatever researcher have came across during the course of her study, she is of strong belief that because of failure in implementation of the legal framework, the cases of human trafficking are cases are increasing, और आपने उसको डेटा सब्सटेंशिएट कर दिया, महाराष्ट्र में इतना हुआ, गुजरात में इतना हुआ, जो भी, तो वैसे ही आप थियोरेटिकली आपका H0 एक्सेप्ट होगा। और आपको एक स्टेप आगे जाना है, तो आप इसके ऊपर क्वेश्चनर बनाओगे। भले ही आप लीगल, क्योंकि आप लॉ के लोग हो, तो आप किन लोगों को मिलेंगे? एक तो आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोगों को भी मिलना पड़ेगा, आपको थोड़ा डेयरिंग करना पड़ेगा जर्नलिस्ट जैसे, उनके but भी sir ओपिनियन लेने पड़ेंगे। I have opted doctrinal research so I'm not doing field work because yes because it won't be possible for me to meet the prostitutes or the person suffering from sex trafficking. So you are the second person that I am meeting in the 2 months. पिछली भी लॉ की लड़की थी, उसको भी ऐसे ही सवाल था और वो भी ऐसा ही कर रही थी काम। तो इन दैट केस यू आर सेफ। आई मीन इफ यू आर नॉट गोइंग इनटू द फील्ड, क्योंकि आप अगर फील्ड में जाते तो फिर आप सोशल साइंस वाले बन जाते, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है ना। आप सोशल वर्कर वाला काम करते। यू आर ओनली लुकिंग एट द एफिकेसी ऑफ एंड द रिजिडिटी ऑफ द लीगल। मग जज लोकांना भेटा ना मॅडम, जाओ लेबर कमिश्नर को जाके मिलो, किसी जज को जाके मिलो, अरे मिलो तो सही यार, मिलोगे तो पता चलेगा ना। आपको लिटरेचर में से तो जो छपना है वो छाप देंगे। गवर्नमेंट हमेशा कहती है बाल मजदूर नहीं है, चाइल्ड लेबर नहीं है, ट्रैफिकिंग नहीं है। सत्यार्थी साहेबांना जाऊन भेटा, जो चाइल्ड लेबर पे काम करते हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला। आप मिलो, मैं ये नहीं कहता कि हाइपोथेसिस के लिए मिलो, बट यू मस्ट टॉक टू नंबर ऑफ पीपल टू गेट रियल इनसाइट, बिकॉज व्हाट इज अवेलेबल इन द मीडिया और न्यूज प्रिंट, मैं इसको फेक मानता हूँ। जब तक मैं ग्राउंड पे जाके मेरे अपने आप को मैं कन्विंस नहीं करता ना, तब तक अटाले सर किसी को नहीं गिनते। और भले ही मैं गलत हूँ तो मैं डिफेंड करूंगा कि ये मेरा फाइंडिंग है। मीडिया चाहे कुछ भी बोलो, मैं थोड़ा टेढ़ा आदमी हूँ जब रिसर्च का काम आता है। बट आई एम नॉट सेइंग टू बी टेढ़ा, बट डोंट से दैट यू आर नॉट गोइंग इनटू फील्ड, रादर यू शुड गो। एंड कोमावार सर अभी रिटायर्ड हो गए, नहीं तो मैं श्रीकांत जी Yes. को तुरंत बोलता, अरे ऐसे कैसे आपके बच्चे? श्रीकांत वॉज माई गुड फ्रेंड, श्रीकांत जी, आई कुडंट से श्रीकांत बाय वन देम। मैं भी कई बार उनसे लीगल चीजों के ऊपर, स्पेशली फैमिली कोर्ट के मैटर के ऊपर, कई बार मैं उनके डिपार्टमेंट जाता था जब मैं मेरे काम करता था। बट यू मस्ट गो टू दी एटलीस्ट सर्टन जजेस टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। अभी भी कोरोना में ये सब बंद है। कुछ आप किसी सुप्रीम कोर्ट का अगर किसी रिमार्क आया होगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा सकती है हमेशा कि भैया बिहार में ट्रैफिकिंग क्यों बढ़ रहा है, ऐसे रूलिंग देखिएगा। आपको उसमें डूब जाना है। हे बघा, रिसर्च करणं म्हणजे तुम्हाला प्रेम केल्यासारखं आहे, झपाटून गेलं पाहिजे तुम्ही। फक्त 5 वर्षच प्रेम करा, आणि एकदा तुम्हाला प्रेम करायची सवय लागली ना, मग तुमच्यातला रिसर्चर तयार होतो। मेरा रिसर्च से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, मैं पूरा कॉर्पोरेट और फाइनेंस का आदमी हूँ। बट somehow being a bachelor, being retired and somehow got accidentally into research, मैं अभी दीवाना होने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अब दीवानगी से जीना है और रिसर्च पे ही जीना है, तो वो होता है। फिर आगे के रास्ते आपके खुलते हैं। द मोर क्वेश्चन यू आस्क, द मोर डोर इट विल ओपन। और जितने डोर ओपन होंगे ना, उतने आपके रिसर्च का रिचनेस बढ़ेगा, कॉन्टेक्स्ट रिचनेस, बिकॉज हियर यू आर डूइंग प्योरली ऑन ए डॉक्ट्रिन बेसिस, Yeah. है ना। अब मेरे को उसका कॉन्टेक्स्ट बढ़ाने का है, तो मैं कुछ यूट्यूब के क्लिप्स देखूंगा, उसके रेफरेंसेस डालूंगा, कुछ रूलिंग्स देखूंगा, कुछ सुप्रीम कोर्ट की फटकारे देखूंगा, कुछ एक आधे एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कमेंट देखूंगा, ये सब मैं डालूंगा उसमें। फिर मैं बोलूंगा हाँ, मैं अभी मेरा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रही हूँ, दैट विल बी रीजनेबली सेफ टू डू दैट इफ यू डू नॉट वांट टू डू अ स्टॅटिस्टिकल टेस्ट, विच आय टोटली ॲग्री। येवले सर बहुतेक ॲग्री केले नसते त्या काळी, त्यावेळेस बऱ्याच लोकांचे थिसिस एक्सेप्ट नव्हते झाले बरं का। आणि ज्या लोकांचे वायवा आणि नोटिफिकेशन निघाले होते, मला वर्ष आठवत नाही, त्यांचे नोटिफिकेशन थांबवले होते। ज्यांचे नोटिफिकेशन निघाले त्यांना ते काय तुमचं कोणता सेरेमनी असतो ना जेव्हा तुम्हाला ती डिग्री मिळते, त्या डिग्री त्यांचे नाव नव्हते टाकले, बहुत तब बवाल मच गया था। बट ही वॉज राइट टू सर्टन एक्सटेंट, वो बाद में स्ट्रीमलाइन हुआ है।
बट फिर भी मैं मानता हूँ कि आपको जरूरी नहीं है स्टैटिस्टिक की टेस्ट करना, बट अगर मैं आपका गाइड होता तो मैं आपको बोलता कि कम से कम कुछ तो करो तो थोड़ा लेजिटिमेट हो जाएगा, बट आपको अभी ये करना पड़ेगा टू मेक इट मोर लेजिटिमेट, है ना? Okay, sir. Got it? Okay, sir. हाँ. Yes, sir. Thank you. ओके. आहेत का प्रश्न? 1:40 झालेत. प्रश्न नसतील तर 2 दिवस ऐकल्याबद्दल तुमचे आभार. तुम्ही जे काही शिकलात ते तुम्हाला कुठेतरी कामात येईल. एक चांगले नागरिक बना, चांगले शिक्षक बना, चांगले संशोधक बनायचा प्रयत्न करा. जेवढं होतं तेवढं प्रामाणिकपणे करा आणि अबव ऑल स्टे सेफ. Thank you very much, sir. ये दिन चल रहे, अच्छे से रहो, Sir, कोरोना वोरोना से बच जाओ. very important. हाँ. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you, Thank sir, you. for both Yes, the sir. day's sessions. From all the participants also, I Yes, sir. extend my thanks to Dr. Nikhil Atay, sir. Thank you to Preeti madam. Thank you to academic staff college, and hope to see you again soon. All the best. Thank you, sir. Thank you. Friends, now I'm ending the meeting. Please join by 2 p.m. Okay, ma'am. Ma'am, thank you. Thank